त्यात मी येतोय का मध्ये खूप सर? हां तुला ऐकू येत आहे का तिथून? हां येतं हां फोन में देखने वाला वीडियो ना. So let us start. All sales guys, writing guys must understand how the product works. So I will make a diagram here to make you understand that. So Axonator platform creates app in two different flavors, mobile apps in two different flavors. One is iOS and the other is Android. And it doesn't work on Windows OS, mobile OS, Windows Mobile. Okay. It does work on desktop. All the forms and everything work on desktop in addition to the mobile apps. Okay, this is clear. And the reason I am writing this is somebody might ask you about this, right? During sales calls, demos, right? If they ask you about Windows OS, tell them we don't support Windows operating system because the market share is 4%. This was 2 years ago. Now the market share might be 0. But there is one catch. Windows does have tablets, Surface. Surface tablets are there, right? So are we supporting this? The question is, are we supporting this? As of now, no, but we are working on it. So we'll be rolling out an app which will run on Windows tablets, which are also called as, I think it will work on this one. Yeah. Now second thing, how the mobile app works. Mobile apps have forms, right? Mobile forms, everybody knows what a mobile form is. There are different widgets, and I would encourage all salespeople to understand all the widgets. There are around 10 to 12 widgets. So we can take another session, maybe Vinay or someone can explain all the widgets to the sales team, okay? That will help you answer many of the questions during the demos. For example, the video capture, the live streaming thing. So that will help you give correct answers to the people during the demo. How does the app work? So there are 4 main components of Axonator. One is mobile forms. Second is workflows. Third is document designer. So basically you can call it third one, reporting. Reporting has 3 components: doc designer, report builder. And dashboard builder. So when you are giving demo, you must explain the 4 components first, and the last one is integration. Within integration there is legacy integration and third party integration. Pura platform, the entire platform is summed up into these 4 components. So that has to be extremely clear in your minds when you're talking to the customers. Okay? So tell them that we have mobile forms, workflows, reporting, and integration. That's all. MWRI. Mobile forms, workflows, reporting, integration. Now I'll explain each one of these. Mobile forms. So this is slightly a misnomer because it also works on desktop. So remember in the back of the mind, it does work on desktop, but our strategy is to show ourselves as mobile first technology company. And because that is the reality, we have focused a lot on mobile side of this and less on the desktop. There are many different tools which are available for desktop from last 20 years. So desktop is not going to take us to the world market.
And that is our differentiator also, that our apps, mobile apps are far ahead of the rest of the market. They are very high performance and they are native apps actually. Excuse me. Jay, what is a native app? Native app? What is native app? Native apps, okay. Native apps are, there are two kinds of apps, mobile apps. One is native, one is hybrid. I'll explain the native and hybrid. And this is also this is an important point because during the demos you might want to talk about this, right? So native apps are built in native technology. Hybrid is built in HTML, just like a website. Hybrid app is nothing but a website resized to fit a mobile screen. So actually what happens is native apps is it is developed in Java, for example. Dynamic. And this is HTML, CSS, just like a website. So that is the major difference. So this is high performance. This actually hybrid app is like this. It's an app, it's a native app. Hybrid app is a native app which contains a browser inside the app. So there is a native app which is built in Java, but it is empty app. There is only one browser window inside that app. And this browser window takes the whole space as if you look at any browser on the mobile, you will see address bar and everything, right? So they just removed that address bar and front and back button. Everything is removed. Only the white screen remains, and in that, if the website is loaded, okay, so you will see as if it is a mobile app, but it is actually a website inside a native app. Is this understood or not? Yeah. Like Facebook app? Sorry? Like Facebook app? Facebook app is a native app. It is not a hybrid app. So, Basic, we work on the basic or dynamic. क्या डायनामिक और बेसिक HTML मतलब बेसिक हो गया, native मतलब डायनामिक वर्जन हो गया, ऐसा है। आप लोगों ने विंडोज का कोई ऐप यूज किया? हमारी जो वेबसाइट है प्रोसेस किया अभी वो हाइब्रिड में आएगी मतलब So for example, we are वो opening website in Chrome also Chrome application. So Chrome is a native application, but it is opening the website within, like when we type in address bar. So whatever opens, that is a website. Give me an example of a native application on Windows. ब्राउजर में जो वेबसाइट ओपन होती है दैट इज हाइब्रिड वेब हो गया ना वो। हाँ तो वो समझ गया। दूसरा क्या नेटिव क्या? नेटिव जैसे आउटलुक यूज किया क्या? हाँ आउटलुक यूज आउटलुक वेबसाइट है क्या? नहीं, आउटलुक क्या है? इट मींस वो तो application है, app है। टूल वो ऐप है, ऐप है। है ना? उसमें HTML नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा समझ समझ रहे? गए। जो ब्राउझरवरनं जे साईट ओपन होती ते तुमचं हायब्रिड झालं हाँ। और फॉर एग्जांपल आउटलुक है वो एक टूल है जहाँ पे तुम मेल्स एक्सेस करते हो दैट इज नेटिव। आपने वो WhatsApp डेस्कटॉप यूज किया कभी? नहीं। नहीं किया। तो डेस्कटॉप में WhatsApp का ये मिलता है वो डाउनलोड। तो बता रहे एग्जांपल जो यूज किया वो बताओ। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कौन से यूज कर रहे हैं आप? जैसे वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS Office. MS Office is not a website. Yes. Everybody knows this, Yes. but I'm still telling it is a native application, Yes. right? It is not built in HTML. Okay. Okay, तो अगर आपने आउटलुक खोला तो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल सी ऑल द ईमेल्स, जिस पे क्लिक किया वो ईमेल बाजू में दिखता है, ऐसे ही ना आउटलुक। Right. लेकिन ये जो है ना UI, ये नेटिव UI है, ये वेबसाइट नहीं है, वेब पेज नहीं है। Right. इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो अलग है, लेकिन ये जो आउटलुक है उसका वेब वर्जन भी आता है, बराबर है, लेकिन उसमें भी सेम ही दिखता है वो, उसमें भी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दिखते हैं ईमेल्स और राइट हैंड साइड पे ईमेल खुलता है। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि ये जो UI है ना ये HTML यूज करके बनाया है, तो उससे होता क्या है कि ये उतना स्मूथली नहीं चलता जितना ये चलता है। Response time, So lag, an so on app and can so be forth. hybrid also and native also at the same time. मतलब both. बोथ नहीं हो सकता। नेटिव हाइब्रिड का मतलब ही है ना, देखो एक्चुअल में ना दो टाइप कौन से है, HTML है और नेटिव है। दो टाइप्स कौन से? HTML, वेबसाइट क्या होती है? वेब मतलब HTML, तो वेब और ये नेटिव, ये आ गए थे ध्यान में अभी। दिस इज वेब, दिस इज नेटिव।
इसका परफॉर्मेंस हाई क्यों है? क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज में बना है, ये HTML में है तो ये अटक अटक के चलता है, राइट? जैसे तुमने स्क्रॉल किया तो थोड़ा अटकेगा, दूसरे पेज पे गए तो पहले वाइट होता है, आउटलुक होता है बीच में white। यस 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 क्योंकि ये दूसरे पेजेस लोड कर रहा है, पुल कर रहा है इंफॉर्मेशन, पुल कर रहा है सर्वर से और पेजेस लोड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये इधर ही है, करेक्ट ये कहीं से ला नहीं रहा। करेक्ट ये नेटिव और ये वेब है। हाइब्रिड क्या है? ये दोनों का मिश्रण, राइट? तो ये जो मैंने अभी बताया ना, इसमें क्या बोला कि बाहर से नेटिव ऐप है, एक नेटिव ऐप है खाली एम्प्टी, और उसके अंदर ब्राउजर डाल दिया, ब्राउजर विंडो, और उसके अंदर वेब डाल दिया, तो ये हो गया हाइब्रिड ऐप। तो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स, नेटिव, वेब और हाइब्रिड, ठीक है? तो वो बेस्ट कौन सा है इन तीनों में से? नेटिव। नेटिव इज द बेस्ट बिकॉज उसका परफॉर्मेंस हाई, लेकिन कॉस्ट भी उसकी सबसे ज्यादा है। HTML वेबसाइट बनाना है सपोज, तो कॉस्ट विल बी लेस। नेटिव ऐप बनाना है, कॉस्ट विल बी हायर बिकॉज द एक्सपीरियंस इज गुड। फेसबुक ऐप इज एक्चुअली नेटिव ऐप, इसलिए इतना स्मूथ है, इतना लंबा पेज रहता है तो ऐसा अटकता नहीं होगा, स्मूथली ऊपर जाता है। तो नेटिव ऐप्स आर हाई परफॉर्मेंस, ठीक है? And but the benefit of hybrid apps to the companies are that those apps work on any platform. So you just develop one application, this hybrid app, and it will work on all 3 iOS, Android, Windows OS. That's very important point. That is the reason why hybrid apps are there in the Yeah. first place. So प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट HTML CSS में बना दो। हाँ? समझा नहीं मेरे को ये एंड वाला हाँ, वही फिर से मैं बता रहा हूँ। ये जो ऐप होता है ना हाइब्रिड, ये HTML CSS में बना रहता है ना, वेब है ना, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे चलता है, विच इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ नेटिव ऐप, Hybrid. हाइब्रिड ऐप। सॉरी, ब्राउजर नेटिव ऐप के लिए, हर ऐप के लिए एक बनाना पड़ता है, हर प्लेटफॉर्म के लिए नया ऐप बनाना पड़ता नया है। डेवलपमेंट। So Exonito is native है? Yes. Exonet is native. We have 2 different. Android app is different. iOS app is different. So answer is yes, Exonet is native, and because of which the performance is high, because of which we have spent more money also. Okay. So these are points, important points for telling to the customers, writing in the content, knowing in general also, the graphics बना रहे हो, then also you need this. Sometimes clients will ask you, is this app native app or hybrid app or HTML app or web app? So what will you say? It's a native app. So thanks for asking that question. A side note, most of the companies, corporates, they are building native hybrid apps to save money, and they are marketing people, they tell that this is less costly and it runs on all platforms, so you should build hybrid app. तो वो बनाते हैं, और उसके काफी लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि सिंपल फॉर्म्स है ना अपने, तो फॉर्म्स जो है वो क्यों नेटिव में बनाने का है? तो HTML में बना दिया तो फॉर्म तो ऑलमोस्ट वैसे ही दिखने वाला है, क्या इतना फर्क, क्या एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ता है? बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी बिलीव, बिकॉज व्हेन द फॉर्म्स बिकम वेरी लार्ज, नाउ दिस GATEX client, their form is such a big form, तो large forms don't work well in HTML, scrolling नहीं होता, offline नहीं चलते. So bigger companies will typically tell you कि we will go for hybrid app, इन हाउस बना लेंगे हम, हाइब्रिड बनाएंगे, कॉस्ट कम लगती है, तुम्हारा महंगा है, ऐसा अगर बोला किसी ने तो यू कैन टेल द बेनिफिट्स ऑफ नेटिव ऐप. अभी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो मोबाइल ऐप्स है, ये है ना, इनके पास एक लोकल डेटाबेस है जो मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है? तो वॉट एवर फॉर्म हम भरते हैं, वॉट एवर फॉर्म वी फिल, दे आर स्टोर्ड इन लोकल डेटाबेस ऑन द मोबाइल. Then there is a sync engine, synchronization engine, which will take the data from local DB to what, right? So that is the question. Like, इतना architecture समझ में आ रहा है? इसकी वजह से क्या होता है? ये sync engine will be turned off when internet is not there. Correct. Your apps will still work. Correct. And when the internet is on, the data will be synchronized with what? Right? So
अभी ये जो है शॉर्ट आंसर इज क्लाउड. क्लाउड लग रहा है इधर. So, Jayesh, there is a question. हाँ. In offline functioning, is there any limit that how many forms can be filled because so of the memory? That is only limited by the storage available on the phone. Or your device. So this database is called SQLite. SQLite is a standard technology which stores data on the phone in the memory. तो इसका memory का size जितना होगा ना, suppose it is 10 GB, then जितना भी 10 GB में आएगा, photos, videos, including उतना उस पे आएगा. Good question again. तो because people can answer, they are actually ask this question. वो ये भी बोलते हैं कि भर गया तो, Exactly. हाँ. तो ऐसा बोलते हैं जैसे तुम क्या कर सकते हो? इंटरनेट नहीं बोलते और ये भर गया तो? Download तो सेल्स वाले भी अपन हैंग नहीं हो जाएंगे. भर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना? ये कर सकते कुछ. डाउनलोड करके रखो ना. Memory card लेके. डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड करो, हटाओ वहाँ से लोकल फोन से यू अभी साइट पे, हाँ साइट पे गया आदमी, क्या क्या लेके जाएगा उधर, है ना? तो उसको बताना पड़ेगा कि इसका मेमोरी बड़ा है तो तुम बराबर है ना. उसके ऊपर कोई ऐसा मैजिक नहीं कर सकता एक्चुअली. आंसर इज क्लियर, नो मैजिक. तुमको एक तो मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वट एवर यू से कि कॉपी करो, कुछ करो, लोकल लैपटॉप पे कॉपी कर लो. इट्स सेम लाइक योर डिजिटल कैमरा ना, भर गया उसको हटाना है कुछ Right. उसके बाद पिक्चर आप नहीं ले तो सकते. मेमोरी स्टिक लेके जाते हैं ना बहुत सारे. करेक्ट. तो उसको क्या बोलते हैं बोला आपने? वेब में से जो डेटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल डेटा स्टोरेज. ये लोकल डेटा स्टोरेज ये फोन पे होता है, अच्छा. और ये सिंक्रोनाइजेशन इंजन है ये भी फोन पे होती फोन पे है. होता है. दिस इज ऑल्सो ऑन द फोन. तो दिस पार्ट होल थिंग इज ऑन द फोन. करेक्ट. अब व्हेन यू से एक देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बटन ऑन द ऐप, एक्यूरेटर ऐप, ये जब क्लिक करते हैं आप, तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन इंजन क्या करती है, वो डेटा उठा के क्लाउड में डाल देती है. वैसे नहीं तो बोलते. This is better. बस. हाँ. Very good. क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड इज ऑल्सो नॉट समथिंग मैजिक. क्लाउड इज नथिंग बट वन मशीन. वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा रहता है, उसको कीबोर्ड नहीं रहता और स्क्रीन भी नहीं रहती, सिर्फ सीपीयू रहता है. वो डब्बा, वो दिल्ली पुलिस वाले पता है ना तेरे को, उन्होंने रेड किया था तो वो लेके गए मॉनिटर. क्या है सब पुलिस स्टेशन में, बोले सब लेके आए, अभी अपन पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो ये जो कंप्यूटर है ना, दिस कंप्यूटर इज इन द क्लाउड. तो ऐसा लगता है ऊपर है, लेकिन सारे क्लाउड जितने भी है ना जमीन पे ही है. अमेजोन के डेटा स्टोर्स है, डेटा सेंटर्स, वो सब जमीन पे है. सारे सर्वर्स होते हैं ना. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मशीन रखे हैं, सर्वर्स, डेटा सेंटर देख रहे हैं. हाँ हाँ. तो अपना डेटा जाता है डेटा सेंटर में. विच डेटा सेंटर? AWS. अमेजोन ने प्रोवाइड किया वो डेटा सेंटर. Amazon Web Services is the name of the data center. It is built by Amazon. तो यहाँ पे जाता है, राइट? अभी अगर if data is going into the cloud, तो हमको कैसे दिखेगा? उसके लिए हमने बैकएंड में क्लाउड के साथ डेस्कटॉप का कनेक्शन लगाया है, and this is called our backend. बैकएंड में आप पूरा डेटा देख सकते हो. और ये क्या लगाया आपने? ये जो है ना, ये वेब ऐप है. वेब ब्राउज़र. जैसे google.com है वैसा axonator.com है. app.axonator.com. ये क्या है? वेबसाइट है. app.axonator.com is a website where this data, whatever you are submitting, is visible in the data in the website. Stored on the cloud, visible on your desktop through the website. ठीक है? तो डेमो में डेटा पहले क्लाउड में जाता है. तो अभी तुम जो लोग डेमो कर रहे थे ना, वो कैसा कर रहे थे कि डेटा ईमेल में जा रहा था तुम्हारा, ऐसा लग रहा था डेमो देख के. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डेमो कैसा हो रहा था, हम दिखा रहे थे ये फॉर्म भर दिया, क्लिक कर दिया, ईमेल आ गया. क्या फील होता है लोगों को कि डेटा ईमेल में जा रहा है? तो ऐसा फीलिंग नहीं देने का.
डेटा जाएगा सर्वर पे, वो पहले दिखाओ डेमो में। तो अभी ये जो टीवी चालू करेंगे ना अपन, इस पे वो दिखा देंगे एक बार। ये ऐसे डायग्राम भी बना लेंगे पीपीटी। हाँ, ये डायग्राम भी बना देंगे। इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना सकते हैं कि मोबाइल से कहाँ जा रहा है, कोई बाद में बना लेते हैं। ये थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन व्हाट आई हैड एनविजन्ड एक्चुअली। तो ठीक है, क्लाउड में जा रहा है, सर्वर पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे एक डेटाबेस है, सर्वर पे बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ से ये लोड हो रहा है वेबसाइट में। अभी जब डेटा स्टोर होता है यहाँ पे, इसके बाद उसका रिपोर्टिंग होता है। तो रिपोर्टिंग कैसे होता है कि जो भी डेटा आया वो एक टेम्पलेट होता है पीडीएफ का। टेम्पलेट मतलब उसमें प्लेस होल्डर्स होते हैं। यू नो टेम्पलेट राइट, पीडीएफ टेम्पलेट। हाँ, तो पीडीएफ टेम्पलेट क्या है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट विद प्लेस होल्डर्स। जो भी डेटा आपने सबमिट किया, यू नो दिस। Yes. हाँ, सपोज मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबमिट किया मोबाइल ऐप से, यहाँ से, तो वो क्लाउड में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। वहां से इधर पीडीएफ जो है अपना टेम्पलेट है, जिसमें एफ नेम लिखा है एक जगह पे, एक जगह एल नेम लिखा है, तो ये वैल्यूज उसमें चली जाएंगी, इस टेम्पलेट में जाएंगी। वैल्यू जब टेम्पलेट में जाती है तो उसको रेंडरिंग बोलते हैं, और उसका आउटपुट जो आता है वो पीडीएफ होती है। इसमें फिर लोगो वो सब जो यहाँ पे डाला है टेम्पलेट में वो सब आ जाएगा, और जो डेटा इसमें प्लेस होल्डर की जगह पे इधर डेटा आ जाएगा एक्चुअल, राइट, एफ नेम एल नेम। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट जनरेशन, राइट। तो ये पहले डेटा कहाँ पे आया, डेटाबेस में आया, फिर डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, फिर ईमेल जनरेट हुआ। ईमेल किसको भेजना है वो सब कॉन्फ़िगरेशन होता है बैकएंड में से। फिर ये ईमेल ये पीडीएफ अटैच हो जाती है ईमेल को, और ईमेल इज सेंट। ये अभी जो बोल रहा हूँ मैं, ये एक स्टेप बोल रहा हूँ। स्टेप वन क्या हुआ, फॉर्म फिल किया। स्टेप 2 क्या हुआ, डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। स्टेप 3 क्या हुआ, ईमेल सेंड हो गया। इसको बोलते हैं वर्कफ्लो, इसको बोलते हैं वर्कफ्लो, राइट। तो वर्कफ्लो की मैंने 3 स्टेप्स एग्जांपल के हिसाब से दिया। दिस कैन बी ड्रैग ड्रॉप करके इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं आप। मतलब और एक स्टेप में बता देता हूँ, फिर ये बता सकता हूँ क्या बोला। Please tell me your joke. टेल मी योर। आपने बोला ना क्या? उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब पहले टेम्पलेट, पहले पीडीएफ, फिर बाद में टेम्पलेट बनाएंगे। इसमें तो प्रॉब्लम था ना, इसलिए ये ऐड करना पड़ सकता है। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये स्टेप, द नेम ऑफ दिस स्टेप इज फिल फॉर्म। फिल फॉर्म। When this step is executed, जब ये स्टेप पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, वर्कफ्लो में पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करते वक्त मैं क्या बोलूंगा कि ये स्टेप है ना, विल बी फिल्ड बाय विनय। ये सेटिंग डाल दिया मैंने विनय का। तो जब ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, विनय को एक फॉर्म असाइन हो जाएगा। फिल फॉर्म में मैं 2 चीजें बताऊंगा ना, कौन सा फॉर्म और किसको देना है। समझ रहे कि ये पार्ट नहीं समझ रहा, मैं फिर भी पूरा ये मैं बोल देता हूँ। पहले ये स्टेप क्या है, ये जब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये कॉन्फ़िगर होगी, पहले तो अपन पूरा वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करके रखेंगे ना क्लाइंट के लिए, लेकिन यूज जब होगा और तब ये फ्लो स्टेप जब एग्जीक्यूट होगी, तब क्या होगा, और कॉन्फ़िगर करते वक्त क्या होगा, ये 2 चीजें अलग है। कॉन्फ़िगर करते वक्त मैं क्या बोलूंगा, एक F1 नाम का फॉर्म है हमारे पास, वो VK को असाइन करो, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट होगा तो विनय को एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि यू हैव बीन असाइन्ड अ टास्क, राइट। और उसने अगर उसको क्लिक किया तो ये फॉर्म खुलेगा, फिर ये सबमिट करेगा ना डेटा। सबमिट करने के बाद इसके बाद जो भी स्टेप होंगी, कुछ भी हो सकता है इसमें, वो एग्जीक्यूट होगा। This is a assigned task widget, ना?
असाइन टास्क वाला नहीं है एक्चुअली, फिल फॉर्म वाला है। असाइन टास्क क्या करते हैं पता है क्या, इसको इसके बीच में लगाने पड़ते हैं। सपोज मुझे पता नहीं है कि किसको असाइन करना है, अच्छा वो मतलब सिलेक्ट करेंगे। ऑटो असाइनिंग नहीं होगा तो मैं चूज कर सकता हूँ हाँ, pick and तो choose। तुमको मैन्युअली करना पड़ेगा, उसको असाइन टास्क का टास्क बोलते हैं। ठीक है, ये असाइन टास्क का टास्क है वो, हाँ वो आरवी ने बताया। बराबर। मतलब मुझे पता है कि अभी मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद विनय को भरना है, तो ये कौन सा हो गया, फिक्स्ड यूजर, इसको ही भरना है। लेकिन पता नहीं अभी किसको भरना है, वक्त पे जो अवेलेबल होगा वो उसको भरना है, लेकिन कौन अवेलेबल रहेगा वो पता नहीं है, लेकिन कौन बताने वाला अवेलेबल कौन है वो भी नहीं है। सपोज लाइक उबर वर्क्स, उबर में तो डायनेमिकली नियरेस्ट वाला आ जाता है, जियो लोकेशन के साथ। ये मैनुअल वाला हुआ, इसमें भी नियरेस्ट का भी पॉलिसी आता है। करेक्ट। तो टास्क किसको असाइन करना है उसको पॉलिसी बोलते हैं। तो अलग अलग पॉलिसीज है, एक है मैनुअल पॉलिसी, एक है फिक्स्ड, एक है नियरेस्ट उबर वाला। मतलब सपोज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया अपने ऑफिस में, मैंने रिपोर्ट कर दिया, डेटा गया सर्वर पे, सर्वर से किसको, आदमी को गया, एक आदमी को, या एक आदमी को नहीं गया, सपोज उसमें नियरेस्ट वाला बोला है, तो नियरेस्ट जो बंदा, सपोज एसी खराब हो गया मेरा, कौन सा ये कंपनी जो भी है कैरियर, तो मेरा एप्लीकेशन में मैं इसको बारकोड है सपोज उसको स्कैन करता हूँ, तो मैंने एक फॉर्म भरा ना, फॉर्म में क्या भरूंगा मैं, प्रॉब्लम हो गया एसी में, वो पानी गिर रहा है और ये फोटो सबमिट, मतलब मैंने अभी ये पहला स्टेप लिया, सबमिट करने के बाद वर्कफ्लो होगा अगर वहां पे तो वो एग्जीक्यूट होगा। उसमें सपोज उसमें है असाइन टास्क का स्टेप है, और वो विनय को नहीं, उसके जो कैरियर वाला जो आदमी है, उसका जो मेन है डिस्पैच वाला आदमी, उसको टास्क जाएगा कि अभी तू टास्क किसको देना है, तो एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें वो सिलेक्ट करेगा। करेक्ट। वो भी एक टास्क है, लेकिन जिसको सिलेक्ट करेगा फिर उसको ये फॉर्म जाएगा और उस आदमी का नाम ये रहेगा, तो उसको एक ये आएगा नोटिफिकेशन। ये हो गया मैनुअल असाइनमेंट। अभी नियरेस्ट असाइनमेंट कैसे होगा कि उसमें मैनुअल नहीं रहेगा कोई, कैरियर को जाएगा डेटा, कैरियर के डेटाबेस में जाएगा, उसमें जो नियरेस्ट आदमी है, जियो लोकेशन नियरेस्ट टू व्हाट, ये पॉइंट जहां से भेजा है, करेक्ट। तो कैरियर का नियरेस्ट टेक्नीशियन जो होगा इस एरिया में या इधर भी जिधर, उसको नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, गो एंड फिक्स इट। अभी ये जो है, ये मैंने स्टेप 2 बताई अभी, एक बताई मैनुअल असाइनमेंट, एक बताई फिल फॉर्म, ये 4 स्टेप बताए मैंने अभी। इसका तो कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बराबर है ना। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सबमिट होने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, ये भी एक कॉम्बिनेशन है ना। करेक्ट। तो इसलिए मैंने बोला कि उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज। जयेश अगर आप सीक्वेंशियल वर्कफ्लो और पैरेलल वर्कफ्लो ऐसे समझाएंगे तो ज़्यादा, पैरेलली जो एग्जीक्यूट होता है और सीक्वेंशियली जो एग्जीक्यूट होता है वर्कफ्लो, तो इसी में अभी स्टार्ट पॉइंट तो एक ही रहेगा कभी, उसके बाद पहली स्टेप कभी भी एक होती है, उसके बाद अगर तुमको 2 लोगों को असाइन करना है सपोज, तो उसको बोलते हैं पैरेलल, एक साथ दोनों को असाइनमेंट हो गया, फिर वो मर्ज हो जाती है, तो इसको फोर्क बोलते हैं, इसको मर्ज बोलते हैं। फोर्क होता है पहले और फिर मर्ज होता है, तो दिस इज पैरेलल वर्कफ्लो। तो पैरेलल वर्कफ्लो इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कफ्लो, इट इज पार्ट ऑफ द सीक्वेंशियल वर्कफ्लो इटसेल्फ। तो मोबाइल फॉर्म्स इज क्लियर, वर्कफ्लो इज क्लियर और नॉट, इसमें क्वेश्चन है जेपी। तो इसमें बिजनेस लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि सर व्हाट इज योर वर्कफ्लो, राइट, हाउ डू यू वर्क, वी विल कस्टमाइज आवर सॉफ्टवेयर टू वर्क लाइक योर process, As per your business process. as per your process. So this is where the magic goes. So during the demo we will actually show you कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो simplified diagram बनाना है इसका अपने को। तो डेमो में तुम इतना सारा नहीं बताने वाले ना, डेमो में क्या बोलना है वो बताऊंगा, नहीं तो ये इतना सारा नहीं, ये आपने समझने के लिए, और ये भी सिंप्लीफाइड वर्जन ही है पूरा। जैसे अगर थोड़ा डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी बताओ, हाउ डेटा इज सिक्योर्ड, मतलब जो डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ओके, तो वी विल कम टू दैट, मे बी आई थिंक दैट इज सेकंड लेवल ऑफ इटरेशन। पहले अपन ये डेटा जाने देते आगे,
कुछ customers have their own existing systems. Right. पानी के पास इसके साथ इंटीग्रेट करने को API चाहिए, नहीं तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन चाहिए। डेटाबेस इन्फॉर्मेशन बाबा। ये ऐसा ही बोला था मेरे को। पहला वाला सही था। तो आपको दिख रहा है कि क्या फ्लो हो रहा है इसमें पूरे सिस्टम में? डेटा फ्लो हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट डेटा। कहाँ से फ्लो हो रहा है? फील्ड से। कहाँ हो रहा है? ऑफिस तक। So some companies already have some existing software which they are using. उसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेगेसी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। लेगेसी इज नथिंग बट समथिंग वेरी ओल्ड. It may be third party also, but typically we call that legacy system. But only saying legacy is not enough because there are modern systems also which need integration. The modern third party systems are like CRMs, ERPs. These are not legacy systems. These are new systems. अभी नए आएंगे वो भी आएंगे और इसमें। तो आप ये पूछने को बोल रहे थे कि CRM की ERP क्या यूज कर रहे हैं? हाँ ये पूछता हूँ ना कि थर्ड पार्टी कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रॉकवेल का सॉफ्टवेयर यूज करती है क्वालिटी डेटा स्टोर करने के लिए, उसमें इंटीग्रेशन चाहिए उनको। वॉल्वो आइशर है Volvo Eicher, EMS system, Mercedes, Schneider. They are using something. हां ते इलेक्ट्रिक मीटरसाठी कुठलं होतं? EMS काहीतरी म्हणतात, EMS सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मॅनेजमेंट. तो ये इमेजिन दिस इज अ लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है? उनके पास एक तो डेस्कटॉप ऐप होगा, नहीं तो वेब ऐप होगा, डेस्कटॉप होगा नहीं तो क्या वेब और वेब। हाँ डेस्कटॉप या वेब एप्लीकेशन होगा उनके पास ऑलरेडी, करेक्ट और उसमें कुछ तो भी डेटाबेस भी होगा, करेक्ट कुछ भी हो सकता है, ओरेकल एनी डेटाबेस। दिस इज अ सिस्टम, राइट? इतना ही होता है और क्या होता है? डेटा सिस्टम में कुछ नहीं होता है। या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स कैन बी इमेजिन्ड लाइक, जब भी वो बोलते हैं हमारे पास कोई तो भी सिस्टम है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा डेटाबेस है और वो डेस्कटॉप या वेब पे चलता है। क्लियर है? एग्जिस्टिंग सिस्टम को इमेजिन कैसे करना है? मतलब अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम बोला तो अपन ऐसा घूम जाते क्या है इसके पास, तो ये है उसके पास, ठीक है? अभी वो क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट होता है क्या इसके साथ? मतलब बोल क्या रहा है वो? मतलब ये आपका डेटा उसके इसमें जा सकता है क्या? हाँ बस, दैट इज वन वन वे। दूसरा वे उधर से डेटा लाने का भी है, तो कंफ्यूज नहीं करने का भी जा सकता है क्या? बराबर एकदम, क्योंकि जनरली वही मांगने वाले कि भाई ये CRM है, इसमें सपोज मैंने लीड कैप्चर किया तो मेरे CRM में जाना चाहिए ना, क्योंकि उसके आगे का मैं CRM में करूंगा जो भी करना है, तो डेटा जा सकता है क्या? बराबर। अभी ये सिस्टम है उसका, इसमें डेटा डालने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर है कि इंटीग्रेशन क्या है? अब ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, इसमें डेटा जाएगा कैसे? API तो उसके लिए इसको होल चाहिए ना। हाँ ये होल जो है ना पेट्रोल भरने का, ये API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोले तो our application gets interface to their data through this endpoint. check post that's a check That's post all, yeah. Suppose ये सॉफ्टवेयर उसने सदाशिव पेट में बनाया, उधर बनाते हैं वो। नहीं बिल्कुल सही बोला है, बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे हाँ, बनाते और वो लोकल सब वो यूज करते हैं, किराना स्टोर वगैरह सब उधर है, उनको API कुछ नहीं रहता होता, ये सिस्टम है यूज करो, है ना? प्योरली क्लोज्ड। हाँ, API बनाते क्यों? उनको जरूरत ही नहीं, मालूम भी नहीं, जरूरत भी नहीं। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू आस्क देम कि तुम्हारा वेंडर कौन है और तुम्हारे वेंडर ने तुमको API दिया है क्या? Has your vendor given you an API? If there is an API, then we can integrate. If there is no API, then we will talk about it, right? नहीं बोलने का, सेल्स। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम है ना तुम्हारे डेटाबेस कौन सा वो बताओ, उसमें डाल देते डायरेक्ट,
उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका इन्फॉर्मेशन मांगने का ओरेकल का डेटाबेस। मैं वही बोल रहा था। तो ये एपीआई नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके डेटाबेस में डाल दो डायरेक्ट, है ना। उसको भी पता नहीं पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर को भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब वो रीड करेगा डेटाबेस में से तो डेटा आएगा। तो ये सेकंड अप्रोच है। तीसरी अप्रोच क्या है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होता है क्या, इंपोर्ट की फंक्शनलिटी है क्या। उसने अगर आप बोला तो हमारे इसमें एक्सपोर्ट का फंक्शनलिटी है। ये डेटा इधर आ रहा है ना सब क्लाउड पे, तो ये यहाँ से वर्कफ्लो में जा सकता है, ये अभी मैंने बता दिया। फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट में भी जा सकता है, और यहाँ से वो डैशबोर्ड में भी जा सकता है। बैकएंड में जाता है, पहले तो बैकएंड में जाता है। ये बैकएंड ही है। इसका मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बताने वाला हूँ फिर से। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट किस में होगा, CSV फाइल में, मतलब एक्सेल फाइल में। कॉमा सेपरेटेड। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर सकता है क्या? हाँ, तो तुम इसमें जाना, सिस्टम में हमारे एक्सपोर्ट क्लिक करना, डेटा लेने का, अपने सिस्टम में जाने का, इंपोर्ट करने का, डेटा तुम्हारे डेटाबेस में आ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताया, 3 वेज ऑफ इंटीग्रेशन: एपीआई, डेटाबेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और कोई है क्या? मैनुअल टाइप मेरे को वो समझ मैनुअल डेटा एंट्री इंटीग्रेशन। ये सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। मैनुअल डेटा एंट्री इंटीग्रेशन बोलते भी नहीं आप, वो तो जाके बैठने का, टाइप करने का खुद के सिस्टम में। वो भी करते हैं लोग ना। हाँ बिल्कुल करते हैं। झेपियर यामध्ये कशात येतं करें? Zapier. झेपियर हाँ, Zapier API है ना, पर तो एक हेल्पर API है। कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अभी, फिर भी बोल दे दो चलो। ये सब कौन बोलेगा? वो नहीं रहा तो कौन बोलेगा? मेमोरी रिस्केट हो जाएगी। अभी तुमको बोलना क्या मैं बता दो, ये ध्यान में तो रखना ही है। प्रोडक्ट नहीं समझेगा, मैं ये समझ गया, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझे होना एक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोले तो डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना अपन, मतलब फर्स्ट डाउनलोड करना है, हाँ, अपना डेटा डाउनलोड करके उनको इंपोर्ट करना है उनके डेटाबेस। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है वो बता। पहले एक्सपोर्ट बता, फिर इंपोर्ट बता, तू बता। एक्सपोर्ट इन द सेंस हमने डेटा जब कलेक्ट कर लिया अपने मोबाइल फॉर्म थ्रू, तो अपनी क्लाउड से आके अपने बैकएंड में आगे डेटा, तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे CSV फाइल में अपन हाँ, और वही उनको कह देना है कि जो डेटा आपने डाउनलोड किया है उसको अपनी डेटाबेस में इंपोर्ट कर लेना, जो कि डायरेक्टली करेगा। वही कर ये लेंगे। मैनुअल है प्रोसेस, ये उसको ही करना उसको पड़ेगा, ही करना है, हाँ, कस्टमर को ही करना क्योंकि उसने ना वो डेटाबेस दे रहा है अपने को, है। ना API दे रहा है। तो उसको बोलने का इधर से एक्सपोर्ट कर फाइल, और वो फाइल तेरे इसमें इंपोर्ट मतलब कर। वो डैशबोर्ड से करेगा ना वो। हाँ, वेब ये इंटरफेस से है करेगा। वेब पे। कहाँ से इंटरफेस लूँ से मैं, करेगा। क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो कहाँ से होगा ये? ये क्लाउड में जो भी हो रहा है ना, ये क्लाउड में दिखता नहीं है, ये ब्राउजर में देखना पड़ेगा। क्लाउड के साथ जो भी करना है वो इधर करना है। ते जे तू एक्सपोर्ट वो डॅशबोर्ड dashboard दिलेस ना ते याला कनेक्ट करायला पाहिजे म्हणजे ते इधर भी है ना, यहाँ से एक्सपोर्ट, डेटा फ्लो यहाँ से हो रहा है और कर यहाँ से रहेगा। वो डैशबोर्ड है। हाँ, इसको तो डैशबोर्ड बोल सकता है या बैकएंड बोल सकता Admin panel. है, एडमिन पैनल बोल सकता है। बैकएंड में जो एडमिन पैनल है वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। जिस क्लाइंट को भी आप दोगे ये हमारा एक्सनेटर का है, सो वेब पैनल जाएगा वहाँ से वो निकाल सकता है। या सिंपल भाषा में एक्सपोर्ट क्या करना है अपने को, डेटा डेटा। डेटा दिखता किधर है? समझ गया मैं। हाँ, डेटा जहाँ दिखता है वहीं पे एक्सपोर्ट का बटन है, वो भी दिखा देंगे राइट। और इंपोर्ट हुआ, ये तेरा क्वेश्चन जो है ना, कौन करेगा ये सब कुछ, ये उसको करना पड़ेगा वही और मैन्युअली करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन। एक क्लाउडचा एक क्वेश्चन विचारला होता बऱ्याच वेळा इंडियामध्ये स्पेसिफिकली, की तुमचा क्लाउडचा डेटा इंडियामध्ये, क्लाउड इंडियामध्ये आहे तो का? सिक्योरिटी वाले जो अभी नहीं बात करने का। ओके हाँ सॉरी दैट कम्स अंडरस्टैंड। डेटा कैसे फ्लो होता है वो समझा के मेरे को बताओ। डेटा ऐसे ऐसे फ्लो करके कहाँ कहाँ जाता है, इसका मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम फिर से बता दूँ, ठीक है। हाँ एक फोटो काढता येतो ते रेकॉर्ड होतं आता. तो ते एवढं क्लिअर नाही दिसणार. ठीक आहे फोटो निकालना साइड आहे, क्लियर आहे. जैसे मोबाइल भी अच्छा चाहिए ना रिकॉर्डिंग। अरे काढून आम्ही अरे मी काढता स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे सगळे लाईट येत आहेत. स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
मी वरून करतो. नहीं पर ये ना मैं क्या बोल रहा विनय अपन है ना याचा असं डायग्राम पीपीटी हाँ PDF वगैरह बनवून त्याची आपण फिर वो एक्सप्लेन करेंगे. अभी जो सिंप्लीफाइड बनाऊंगा ना मैं, अभी जो डायग्राम बनाऊंगा हो वो मागचा कलर PPT किती में डाल. छान हाँ दिसतोय. पीपीटी में ये सारा कैसा आता किधर स्टोर होता क्या होता ये सब बता सकते. रेकॉर्ड होतं ना पण हाँ होता है. संबंधित इंजीनियरिंग के लिए काफी कॉम्प्लिकेट हो गई थी डायग्राम. 4 कंपोनेंट्स कौन से? मोबाइल फॉर्म वर्कफ्लो रिपोर्टिंग इंटीग्रेशन. तो इमेजिन करना, मोबाइल से डेटा जा रहा है वर्कफ्लो में जा रहा है, वर्कफ्लो में से रिपोर्ट बन रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है. वैसे डायग्राम बनाने का मोबाइल, उसके बाद क्या है वर्कफ्लो डायरेक्ट वर्कफ्लो नहीं, पहले क्लाउड. क्लाउड भूल जाते हैं अपन, वही प्रॉब्लम है अपना. फिर वर्कफ्लो है, बारिश में दिख रही है मोबाइल फोन में क्लाउड, फिर वर्कफ्लो और फिर उसके बाद में उसको रिपोर्ट. तो क्लाउड में से डेटा है ना, दिखता कहाँ है? बैकएंड में. ठीक है, जाता कहाँ है? एक्सपोर्ट में जाता है. और कहाँ जाता है? डैशबोर्ड में. डैशबोर्ड का मीनिंग बताता हूँ मैं, तो तेरा थोड़ा अलग मीनिंग है डैशबोर्ड का. वो बैकएंड को तू डैशबोर्ड बोल रहा है. डैशबोर्ड बोले तो जहाँ पे चार्ट वगैरह दिखते हैं ना ऐसे. हाँ वो है ना पीपीटी में देखा है मैंने. हाँ वो होम ये इंटरफेस. ग्राफ्स एंड चार्ट है ना, दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. क्लाउड में डेटा है, यहाँ पे डेटाबेस है बरोबर. इसमें डेटा जा रहा है मोबाइल से क्लाउड में जाना. क्लाउड में जा रहा है. क्लाउड में डेटाबेस है एक्चुअली, उसमें जा रहा है, क्लाउड में जा रहा है. ये डेटा बैकएंड में स्टोर हुआ है. बैकएंड, यही बैकएंड है. ठीक है, ये बैकएंड है, इसमें दिखता है, ठीक है तो वही बैकएंड है, वही स्टोर हो रहा है वही स्टोर हो रहा है, दिखता इधर है. और वहीं से अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहीं से डैशबोर्ड में डेटा आता है, वहीं से वो वर्कफ्लो में भी जाता है बराबर. और वहीं से इंटीग्रेशन भी जाता है. मतलब एपीआई में या डेटाबेस में, जो भी अपन इंटीग्रेशन की बात करें अभी, समझ गए. पूरा जितना बोला ये इसमें समराइज होता है. इतना सिंपल फ्लो है. वर्कफ्लो मतलब क्या? ईमेल, डॉक्यूमेंट, यूजर, ईमेल फिर वर्कफ्लो के हिसाब से फिर उसका रिपोर्ट जनरेट होगा, वो ईमेल थ्रू जाएगा, डॉक्यूमेंट पीडीएफ में वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वर्कफ्लो के हिसाब से मतलब वर्कफ्लो में जैसा स्टेप्स है वैसे. हाँ वैसा. पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सब वर्कफ्लो में रहेगा. उसके हिसाब से वो रिपोर्ट जाती जाएगी आपको. हाँ, उसके हिसाब से ईमेल जाएगी, उसको अटैच हो रिपोर्ट अटैच. एक रिपोर्ट डैशबोर्ड और रिपोर्ट लेना, ये रिपोर्ट है, इधर रिपोर्ट है. इसको रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बोल लेते हैं. डेटा रिपोर्ट में जा सकता है तो 2 टाइप की रिपोर्ट है, सिंगल रिकॉर्ड और मल्टी रिकॉर्ड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज मैंने फॉर्म भरा एक बार, तो वो डेटा जाएगा इधर और वो सिंगल रिकॉर्ड है ना, वो एक ही रिकॉर्ड भरा, एक फॉर्म भरा मतलब एक रिकॉर्ड. तो उसका एक पीडीएफ अगर बनना है, एक रिकॉर्ड का एक पीडीएफ है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल रिपोर्ट. सिंगल रिकॉर्ड. लेकिन अभी क्या होता है, मंथली रिपोर्ट होते हैं. मंथली रिपोर्ट लगते ना,
तो महीने में सपोज 10,000 सबमिशन हुए तो 10,000 रिपोर्ट नहीं देंगे ना अपन, एक ही इसमें एक ही रिपोर्ट देंगे ना, तो और एक रिपोर्ट है मल्टी रिकॉर्ड, राइट? एक रिपोर्ट में मल्टी रिकॉर्ड्स भी है ना? So it's a consolidated representation of the entire month, quarter, week, or various functions for which the data is generated. Is that a fair हाँ, understanding? मतलब उसको एग्रीगेशन वगैरह भी हो सकता है उसका। Compress किया है। हाँ, तो मल्टीपल रिकॉर्ड मिलके बन रहा है ना वो, Correct. तो वो हो गया मल्टी रिकॉर्ड रिपोर्ट, सिंगल रिकॉर्ड से सिंगल होता है। Correct. So your monthly accounting may be your single record and the P&L जो आपका ready हो रहा है at the end of the year, it's a multi record. इसका एक्चुअल जो रिपोर्टिंग होगा मल्टी रिकॉर्ड का, तो उसका हमें रिपोर्ट डिफरेंटली क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सेपरेटली क्रिएट करना पड़ेगा, वो पीडीएफ डिजाइनर से नहीं बनता। ओके, पीडीएफ डिजाइनर जो है अपना हाँ, उससे सिंगल रिकॉर्ड सिंगल, बनता है। तो दूसरा है ना उस रिपोर्टिंग वो कौन यूज कर रही है? बट उसमें ऑप्शन आता है मल्टी रिकॉर्ड का, राइट? रिपोर्टिंग में जब ऑप्शन है। मल्टी रिकॉर्ड का भी बिल्डर है अपने हाँ। पास, कभी यूज किया क्या? नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था उसके बारे में। So actually अभी वो मैन्युअली करके देते हैं अपन। कुछ चीजें इसमें से अपन है ना, जैसे डैशबोर्ड अपन अभी Manually. सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है लेकिन कोडिंग में करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ऐसे ड्रैग ड्रॉप बिल्डर नहीं है मेरे पास। वैसे ही मल्टी रिकॉर्ड है ना, वो भी थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं बनता। So there are actually two categories, PDF report या फिर Excel report. So whatever the customer needs, if they need a PDF report of those records, और एक्सेल दोनों ऑप्शन। so that way we can configure that and give it to them. राइट, मल्टी रिकॉर्ड में बनते हैं। मल्टी रिकॉर्ड में भी पीडीएफ और एक्सेल है, सिंगल रिकॉर्ड में तो मल्टी Maybe रिकॉर्ड है। में पीडीएफ कैसे Excel देंगे? हाँ मल्टी रिकॉर्ड में अच्छा पीडीएफ फॉर्मेट को दे देना। हाँ, फॉर्मेट सिर्फ है, दिखने में तो अच्छा, वही है। एक्सेल शीट की जैसी दिखेगा। मैं बोला एक ही तो जो 10,000 पीडीएफ So when I saw the demo, my only problem was this was not clearly articulated. ये क्लियर किया ना, इतना सिंपल है, उसको भी समझ जाएगा। उसको समझ गया ना कि क्लाउड में डेटा आ रहा है, तो वो पूछेगा कि क्लाउड में से डेटा एक्सपोर्ट कैसे करना है। वो कभी बोलेगा नहीं डैशबोर्ड में से डेटा एक्सपोर्ट करना है। नहीं तो कल जाके तुमने बोला कि पीडीएफ रिपोर्ट, तुम कैसे बोलते हो अभी मोबाइल में से डेटा है ना पीडीएफ में जाता है और वो ईमेल आ जाता है तुमको। फिर वो क्या बोलता है, ये पीडीएफ में से एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसको लगता है ये सिस्टम अभी इधर से बाहर निकालने का ना वो डेटा, फिर एक्सेल में ला सकते हैं। क्लाउड में से वो बराबर से इधर हाँ, इधर लॉजिकली क्वेश्चन भी किया। नहीं तो अभी क्या हो रहा था, अपन ने ये डेमो में भी ये बताया, फिर बोला आपने पास डैशबोर्ड भी है, उसमें ऐसा विजुअल दिखता है, ग्राफ वगैरह सब दिखता है। वो क्या बोलता है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए उसने ये पूछना चाहिए कि जो डेटा क्लाउड में है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बराबर पूछा था ये, मैंने हाँ बोल दिया पूछा था ये। तो वही है ना, तो अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। डैशबोर्ड में से डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो सकता है कि ये पूछा था, हाँ, तो मैंने हाँ बोला था। रिपोर्ट में से एक्सेल में, नहीं डैशबोर्ड में से। डैशबोर्ड में से। लेकिन तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड बताने के बाद में वहाँ पे भी बोलते हैं ना हाँ। कि इसमें से एक्सपोर्ट हो सकता है कि हमको अगर चाहिए स्टोर करना है एक्सेल में वगैरह कर सकते हैं कि Yes. तो डैशबोर्ड में से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, वो डेटा में दिखता है ना, सपोज तुमने 10 रिकॉर्ड सबमिट किए मोबाइल ऐप से, तो वो 10 रिकॉर्ड कहीं पे दिखने तो चाहिए। ये 10 रिकॉर्ड है, सिर्फ ईमेल गए, ईमेल गए तो ईमेल में से ढूंढेंगे क्या अपन? क्लाउड में से दिखने चाहिए ना ऐसा ये डेटा, ये दिखता है एक जगह पे, और यहाँ से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते और इन्हीं रिकॉर्ड से फिर हमारा डैशबोर्ड क्रिएट होता है या हाँ। जो कुछ भी होता है। हो। ये जो है ये डेटा का जो व्यू है, रिकॉर्ड व्यू, ये ऐसा व्यू है। डैशबोर्ड इज नथिंग बट अ विजुअल व्यू ऑफ द सेम रिकॉर्ड्स। वो खुद एक एक्सपोर्टेड मतलब एंटिटी है ऐसा। एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना, एक्सपोर्ट उसको नहीं बोलना है अपने को। एक्सपोर्ट जब वो फाइल में डालता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब ये डैशबोर्ड में जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो विजुअल रिफ्लेक्ट है उसका Right. हाँ, वो डैशबोर्ड, रिफ्लेक्शन तो है। वो उधर सर्वर के पास जो है वो मतलब ये उसी सिर्फ का- कॉम्प्लीमेंटेड दिखेगा, इससे अच्छा वो ग्राफ में या फिर विजुअली पाँच समझ चार- जाएगा, ऐसा हाँ। दिखेगा ना। वो वहाँ नहीं देख सकते, उसका विजुअल रिफ्लेक्शन आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं।
लेकिन एक्सपोर्ट ने बोलने का उसको, क्योंकि एक्सपोर्ट मीन्स क्लियरली फाइल में एक्सपोर्ट कर देगा, नहीं तो फिर सब कुछ एक्सपोर्ट ही हो जाएगा। मोबाइल में से भी एक्सपोर्ट हो गया डेटा क्लाउड में, उसको भी एक्सपोर्ट बोलेंगे अपन। तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो गया डैशबोर्ड में, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया रिपोर्ट में, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया उनसे सिस्टम में। तो दैट वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। एक सेकंड, एक कंफ्यूजन हो गया अभी। ये डैशबोर्ड का विजुअल रिफ्लेक्शन, ये सॉरी ये मशीन क्या है, ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा, ये रॉ डेटा उसका रिफ्लेक्शन ये डैशबोर्ड है, बराबर। अब अपन ये रिफ्लेक्शन ये समझे, ये अलग चीज होगी, बराबर। अब क्लाउड में से अपन डायरेक्ट डेटा एक्सपोर्ट, रिपोर्ट, डैशबोर्ड क्लाउड में से डायरेक्ट जाता है ना डेटा, क्लाउड में से जा सकते हैं, लेकिन क्लाउड में ही रॉ डेटा है। हाँ, तो बेसिकली रॉ डेटा ही जा रहा है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में जा रहा है। तो मोबाइल क्या करता है, खुद के डेटाबेस में डालता है पहले, जब इंटरनेट आता है तो क्लाउड में डालता है, क्लाउड में पड़ा रहता है कुछ नहीं किया तो, लेकिन वर्कफ्लो रहा कुछ, उसका सेटिंग किया हुआ रहेगा, तो वो डेटा अलग अलग जगह पे जाएगा। तो अभी जो डेमो अपन दे रहे हैं ना, उसमें ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, जिससे उसको पता चलेगा कि पहले डेटा क्लाउड में जाता है, फिर ईमेल जाता है, फिर दिखाओ कि ईमेल ये आगे देखो, ईमेल ये देखो, डैशबोर्ड में भी दिख रहा है डेटा। ये ऐड कर देंगे एक दो स्लाइड, ये बाय डिफॉल्ट दिख ही जाएगा। यही स्लाइड पर इसका फोटो ले लो, मैं ले लेता हूँ। ये MW आ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है काय मोबाइल वो MD आ रहा है, कुछ मैनुअल डेटा एंट्री इंटीग्रेशन। थोड़ा हवेसाठी किती उघडून जातं, लाईन आली ना, बंद झाली। So this is not rocket science, this is pocket science. इतना सिंपल है, कोई स्कोप ही नहीं है गड़बड़ का। और कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट जब अपन ऐसे अलग अलग जगह पे सुन के प्रोडक्ट समझते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट इतना बड़ा है, खतरनाक है, समझने के लायक नहीं है, इतना ही प्रोडक्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं। अभी इसके टेंजेंशियल क्वेश्चन है, जैसे सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, और यूजेबिलिटी होती है कि हाउ इजी इट इज टू यूज, हाउ सिक्योर द डेटा इज, एंड हाउ क्या था स्केलेबल मतलब 1000 लोगों को दिया तो क्या होगा, बंद हो जाएगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर, दैट इज स्केलेबल। और कस्टमाइजेबल, राइट, कस्टमाइजेबल तो पहला पॉइंट है अपना, ये जितना भी है ये पूरा कस्टमाइजेबल है। इस मोबाइल फॉर्म में जो है वो हम तुम्हारे हिसाब से बनाएंगे, वर्कफ्लो जो बना रहे हैं हम, ये स्टेप्स ये तुम्हारे बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से बनाएंगे। इंटीग्रेशन जो है, जो तुम्हारे पास सिस्टम है उसके साथ होने वाला है इंटीग्रेट। सो दिस इज ऑल कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन उसका एक पार्ट में थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। कस्टमाइजेशन किसको बोलेंगे और कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे, या फिर दूसरा वर्ड बनाना पड़ेगा? नहीं ठीक है, कस्टमाइजेशन है, लेकिन वो क्या है कि लोगों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझता सेल्स में, या फिर ऐसा होता है कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब बहुत ही कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसा लगता है लोगों को, बहुत इजी वर्ड एकदम ये है। I am also using this word in the content. So Workflows are configured. वर्कफ्लोज आर कॉन्फ़िगर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं समझता इंडिया में, मतलब कस्टमाइजेशन समझता है, कस्टमाइज करके देंगे तुम्हारे हिसाब से। लेकिन कस्टमाइज जब करते हैं अपन, तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ये सब कुछ, ये क्या है, कस्टमाइजेशन है। लेकिन कभी कभी अपने प्लेटफॉर्म में फीचर ही नहीं है, जैसे सपोज जब अपने पास फेशियल रिकग्निशन नहीं था, तब अपन ने उसको क्या करके दिया, बना के दिया ना, डेवलप करके दिया, तो डेवलपमेंट ही बोलते हैं उसको, कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट। तो कस्टमाइजेशन कौन करता है, बिल्डर्स करते हैं, ऐप बिल्डर्स। सोल्यूशन डेवलपर म्हणायचं की ॲप बिल्डर म्हणायचं, दॅट इज द क्वेश्चन, सोल्यूशन बिल्डर किंवा, so we have to finalize these terms. App builder sounds like that platform. App builder is not the entire user. app. The solution developer sounds so it's a good word. क्या क्या?
Solution developer, we can use that. Developers. Yeah. तो उनको डेवलपर लगता है सेल्स वालों को, मतलब कस्टमर को ऐसा लगता है कि डेवलपर करने वाले हैं. That is Solution builder technical. Solution Or builder. solution consultant, we can say. हाँ, Solution consultant. कंसल्टेंट. Yeah, we can use that. तो बात तो बोलने वाली लगती है. consults ना Solution builder. कंसल्टेंट का मीनिंग काम करने वाले रहते हैं, लेकिन कंसल्टेंट का मीनिंग Solution provider. क्लियर नहीं लोगों को. Solution providers and coders on program. Coders पे वही developer पे ही आ गया. Solution builder म्हणू शकतो का? डेवलपर बोला तो प्रॉब्लम होता है. डेवलपर नहीं बोलने मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेवलपर बोलने का नहीं है क्या? डेवलपर बोल सकते हैं ना, नहीं बोलने का है कि नहीं बोलने का? डेवलपमेंट करके देंगे ऐसा बोलने का नहीं है. वैसा बोलेंगे तो फिर वो अलग टेक्नोलॉजी में चले जाते, डेवलपमेंट बोला. हाँ, वो वही. ना वैसा होती है. हाँ, तो डेवलपर नहीं बोलते हुए सॉल्यूशन बिल्डर सही रहेगा. लेकिन इंटरनली इन लोगों को सोल्यूशन डेवलपर बोलना पड़ेगा. इधर वो बोलेंगे उधर वो बोलेंगे. वो बिल्डर बोले तो उनको नहीं समझा अपन क्या है. क्लाइंट तो वो 45 मिनट में बोल लेगा. So actually app builder is sounding better to me now than हाँ. solution builder. हाँ राइट, ऐप बिल्डर. ऐप बिल्डर्स. तो अपना उस दिन हुआ था टॉपिक कि जैसे इन्होंने एक मीटिंग में ऐसा बोला था कि वी विल बिल्ड इट फॉर यू, 2 दिन में बिल्ड करके देंगे. तो दैट क्लाइंट को ऑब्जेक्शन किया था कि 2 दिन में डेवलप कैसे करने वाले हो तुम, 2 दिन में डेवलप कर देंगे ऐसा बोला था. तो हाँ, तो बोलो ही मत डेवलप करने वाले. और इनफैक्ट डेमो में बोलो कि डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं, पूरा कस्टमाइजेबल है, ऐप बिल्डर ही कस्टमाइज करते हैं पूरा. ऐप बिल्डर बोलने का कॉन्फ़िगरेटर में बोल सकते हैं ना. और कंफ्यूजन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुका है, बस उस पे भी ऐप बिल्ड, ऐप बिल्डर. बिल्डर क्या करते हैं वो ऐप को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करते हैं. क्या कस्टमाइज करते हैं. मतलब कैसे बिल्ड करते हैं? हाँ, कैसे बिल्ड करते हैं? कैसे बिल्ड करते हैं, Platform. प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं. ड्रैग एंड ड्रॉप Drag करके. and drop करके. Drag and droppers. It's a no code basically. हाँ, हो गया मेरा डेमो. So far at least in our calls तो solution developer जब भी यूज किया कोई इशू नहीं आया. हाँ नहीं आता. नहीं है. People उसका understand. क्या हुआ, उन्होंने डेमो में बोला कि वी विल डेवलप इट फॉर यू, जो नहीं है हम आपको डेवलप करके देंगे. तो सामने वाला थोड़ा टेक्निकल बंदा था, वो बोला तुम डेवलपमेंट की बहुत टाइम लगेगा. 6 मिनट लगेगा पूरा. हाँ, तो आपको भी बोल सकता है सोल्यूशन डेवलपर. आपने अगर बोला कि अच्छा ये हमारे पास नहीं है, अभी नहीं है ऐसा फॉर्म, लेकिन सोल्यूशन डेवलपर विल बिल्ड इट फॉर यू या डेवलप इट फॉर यू बोल दिया, तो उसको लगेगा ना कि टाइम लगेगा इसका. हाँ, लेकिन the way we have been using the word solution developer is when it comes to जब client complexities throw करना start होता है, then only we use the word solution developer. Right. उसके पहले we don't go there. Right. The idea is that you can build your own app, license it, use it. You can't do it. You have so many complexities. You can't do it. That's where my team can help you achieve that. Right. And that is where we then touch upon solution development. So basically first we give the scenario, like we have a platform which is ready. So that helps. And then तो उसको समझ जाता है कि प्लेटफॉर्म है, मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है, तो डेवलपर डेवलप नहीं करने वाले, वो हेल्प करने वाले हैं. And maximum number of times it comes to the point when dashboard comes into the picture. So dashboard right now it's not completely drag and drop, right? It has to be coded. करेक्ट. तब फिर वो आता है कि हाँ ये अगर Solution developer का काम है. हाँ तो यहाँ पे आएगा. राइट. फिर कोलेटेड रिपोर्टिंग है आपका. कोलेटेड रिपोर्टिंग वही मल्टी रिकॉर्ड बोला. हाँ करेक्ट मल्टी रिपोर्ट. So collated reporting it cannot Right. no system can do it. Right. No system. Right. Because that's your whims and fancies, how you want to see it, what you want to see, when you want to see it. Right. So that's when we use the word. This is something which we'll have to customize for you. Right. But there is one thing कि उसमें मल्टी रिकॉर्ड का भी बिल्डर अपन बना रहे हैं. हाँ, ठीक है, हाँ. पहली बात. दूसरी बात डैशबोर्ड का भी बिल्डर बना रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप. लाइव नहीं है लेकिन हाँ? अभी लाइव नहीं है ना. अभी नहीं है. हाँ हाँ बस. तो वो जस्ट ध्यान में. हाँ ध्यान. Got it. Good point. तो वो और पावरफुल हो जाएगा ना platform. और पावरफुल है. मतलब टोटली डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो करना है करो. Yes. Of the people, by the people, for the people. करेक्ट.
Like the current challenge which we are having with Spark, if this dashboard builder is there, तो You 5 could have done it. हाँ 5 मिनट का काम है, खुद बना लेता हूँ Right. क्या चाहिए नहीं वो चाहिए। डैशबोर्ड बिल्डर अपने पास नहीं है, उसका भी एडवांटेज ही ले रहे हैं अपन आप। हाँ वो भी है, वो भी है। तो ठीक है। तो जो दूसरे कंसर्न्स है, ये हो गई फंक्शनलिटी, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है कस्टमर्स की। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कस्टमाइज करके देते हैं। नॉन फंक्शनल क्या है? नॉन फंक्शनल तो वो बोलता है कि ये सिस्टम शुड वर्क स्मूथली, फास्ट, शुड स्केल, शुड बी सिक्योर। ये सब नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स है सिस्टम के। तो यूजिंग दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू इन द सेल्स की थोड़ा टेक्निकल वर्ड डाल दिया तो अच्छा लगता है कस्टमर्स को। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो हम जब पूछते हैं ना उसको, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूछते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन। What all features? फॉर्म्स कौन से है, वर्क फ्लोज कौन से है, रिपोर्ट्स कौन से है, इंटीग्रेशन किसके साथ करना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। MWRI, यही क्वेश्चन पूछना है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल में पूछना है कि स्केलेबल, वो पूछेगा कि हमारे तो 16,000 लोग हैं, तुम्हारी सिस्टम सपोर्ट करती है क्या, स्केलेबल है क्या तुम्हारी सिस्टम? यस। किसी ने ज़्यादा सपोर्ट मांगा, टेक्निकल बोला तो कैसे है, तो हम AWS यूज़ करते हैं। उसमें हमने स्केलेबल कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा है, ऑटो स्केलिंग किया है। मतलब कि हमारा एक सर्वर है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है क्या नॉन फंक्शनल? किस चीज़ से? स्केलेबिलिटी। Scalability, security. Security में स्केलेबल कितना है, मतलब कितना लोड ले सकता है तुम्हारा सिस्टम। 10,000 लोग आ गए तो तुम्हारा सिस्टम डाउन हो जाएगा क्या? तो अभी थोड़ा स्केलिंग के बारे में थोड़ा हाई लेवल बता दो। ऑटो स्केलिंग, पहले कुछ स्केलिंग के बारे में बात करें। सपोज तुम्हारे पास एक मशीन है और उसको यूज करने वाले बहुत लोग हैं, और अभी वो मशीन हैंग हो रही, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट उसका RAM रैम बढ़ाओ, नेक्स्ट मशीन में CPU बढ़ा देंगे, CPU बढ़ा दो। राइट? तो वो स्केलिंग ही है ना, करेक्ट लेकिन इसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। वर्टिकल करेक्ट बोले तो उधर ही स्केल कर देगा, करेक्ट। बराबर है। एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, उसमें क्या होता है, एक मशीन की जगह पे 4 मशीन लगा देते हैं। And all are interconnected. हाँ? And these machines can be interconnected. कैन बी, Interconnected. हाँ ये कनेक्टेड ही रहेंगे। जब रिक्वेस्ट आती है ना तो ये डाइवर्ट होती है इससे। Correct. Correct. तो एक मशीन को रिक्वेस्ट कर रहे सब लोग, उससे अच्छा 4 मशीन को रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो 4 मशीन लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर? तो लोड बैलेंसिंग बोलते हैं इसको, लोड बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। Correct. और इसको स्केलिंग हो रहा है। ये कौन सा स्केलिंग हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल बोले तो एक ही मशीन को बड़ा बनाओ और ज्यादा पावरफुल CPU और रैम लगाओ, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और काम नहीं रहेगा तब वो स्पेस रहेगा। वेस्ट हो गया ना। फिर से तो कम नहीं कर सकते, निकाल लो हार्ड डिस्क वगैरह निकाल नहीं सकते। लेकिन ऐसा स्केलिंग करने का फायदा क्या है, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सब में थोड़ा 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 जाएगा। इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, नहीं इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। बोले तो जब डायनेमिकली लोड ज्यादा है ना तो ये ऐसे बढ़ते जाते हैं CPU, तो लोड बाईपास करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं। लेकिन ये डायनेमिकली बढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑटो स्केलिंग, राइट? और जब लोड कम होता है तो ये मशीन ऐसे निकल जाती है, जैसे ये उड़ गई, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, एक तो रहेंगे। मिनिमम नंबर अपन उसको बता सकते 2 रखना है, तो 2 मिनिमम बोला अपन ने तो 2 ही रखेंगे वो। ये सब कौन करता है ऑटो स्केलिंग? AWS. Or for that matter, any cloud service provider. Amazon does this automatically based on the traffic. Correct. हमको सिर्फ उसको बताना पड़ता है कि मिनिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए। Correct. नियर यू आर गेटिंग, राइट? दिस इज वेरी टेक्निकल एंड वेरी, ऐसी बात किया ना कस्टमर के साथ तो कस्टमर बिकम्स सिंपल फ्लैट। फ्लैट
हमारा सिस्टम AWS का ऑटो स्केलिंग फीचर यूज करता है, जिससे हमारा कैपेसिटी डायनामिकली ऊपर नीचे जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स। इसलिए हमारी सिस्टम स्केलेबल है, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अगर ऑटो स्केलिंग नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, एक आदमी को जाके और एक मशीन लगानी पड़ती है, और एक मशीन लगानी पड़ती है, और एक मशीन लगानी पड़ती है, तो वो मैनुअल स्केलिंग हो गया। और मॉनिटर करने के लिए बैठना मॉनिटर भी करना पड़ेगा किसी को, अरे 2 मशीन से काम नहीं हो रहा है, 2 मशीन से काम नहीं हो रहा है, तो लगा तीसरी मशीन। दैट इज मैनुअल स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिक काम ज्यादा होते हैं। दिस इज प्रोवाइडेड बाय AWS। इवन इन कंटेंट राइटिंग दिस विल हेल्प, राइट? तो अगर किसी ने बोला कि गूगल वाले नहीं करते क्या, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है वो नहीं होता है ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग सभी इसमें है, ऐसा मत बोलना किसी को AWS में। इट इज बेसिकली जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये बेसिकली वो एलियंस को फाइंड करने के लिए कुछ सब अपना CPU देते हैं ना, डोनेट करने के लिए उसका बैंडविड्थ। क्राउड वाला, हाँ वैसे टाइप का है ना ये। वो क्राउड का हो गया ना। हाँ। बिटकॉइंस की बात कर रहे हो? नहीं नहीं मुझे भी वैसा ही लगा पहले, है ना? बिटकॉइन जैसा ही लगा, वो माइनिंग करते हैं। नहीं नॉट विद तेरे दैट। को बिटकॉइन जैसा लगा, आपको क्या लगा मैं समझ नहीं। बेसिकली आई डोनेट माय सिस्टम। वो क्राउड वो बिटकॉइंस वाला ही हुआ, सेम होगा। तो मैं बता दूं उसका और आंसर। ये AWS के खुद के सर्वर होंगे ना, एक ही जगह होंगे। एग्जैक्टली, कोई डोनेट नहीं करता। बिटकॉइन में पूरे वर्ल्ड के यूज कर सकते हैं। वो अलग है, उसको क्राउड क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर बोलते हैं उसको, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या होता है, ये जो बोल रहे हैं वो बताता हूँ मैं। ये पहला अपना स्केलिंग था, ये चल रहा है। अमेज़न का एक डेटा सेंटर होता है जो फिजिकली कैसे दिखता है मैं बताता हूँ। ऐसे बड़े बड़े रूम्स रहते हैं, इसके ऊपर एयर के वेंटिलेटर्स रहते हैं अभी तो शिफ्ट सर्वर को ठंडा करने के लिए। ठंडी जगह पे शिफ्ट करेंगे। हाँ, और ऐसे दरवाजे रहते हैं, उसको विंडोज नहीं रहते। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर से तो ऐसा दिखता है दूर से डेटा सेंटर। लोग उसके अंदर जा सकते हैं कुछ फिक्सिंग करने के लिए हुए, और बाहर गार्ड्स रहते हैं, फिजिकल गार्ड्स। AWS वाले खुद गन वाले लोग रखते हैं वहाँ पे, इस पे कोई भी अटैक कर सकता है, इधर से डेटा उठा सकता है। तो फिजिकल सिक्योरिटी है यहाँ पे। क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगे हैं, बहुत ही सिक्योर जगह है, ऑलमोस्ट मिलिट्री लेवल का सिक्योरिटी है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे CPUs है, बहुत सारी मशीन है, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, यहाँ से इंटरनेट है। नाउ योर क्वेश्चन वाज, ये मशीन आपने डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकते, ये उनकी खुद की मशीन है, ठीक है। डोनेट वाला जो केस है, इज दैट ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन में यूज करते हैं ना, ब्लॉकचेन इज समथिंग ऑन दैट। ब्लॉकचेन भी यूज करते हैं। तो अभी क्या है, तो रोहित आई वाज टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर्स। यहाँ पे डेटा सेंटर ऐसे दिखते हैं ना जी, एयर वेंटिलेशन वगैरह रहते हैं, अंदर मशीन रहती है बहुत सारी, बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहती है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट मेरे को बताने का था कि आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे, फिजिकल सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी कैमरास वगैरह बाकी का जो स्टैंडर्ड है वो तो रहते ही है। हाँ, लेवल्स ऑफ 3 to 4 tier of सिक्योरिटी होता है। क्लियरेंसेस, करेक्ट। तो इसके अंदर जाने के लिए भी क्लियरेंसेस लगते हैं। प्रोटेक्शन जो, हाँ करेक्ट। तो डेटा सेंटर ऐसी चीज है कि वो बहुत सिक्योर है। AWS ने एकदम गन लगा के सिक्योर की हुई ऐसी जगह पे हमारा डेटा है, इतना सिक्योर है, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था कि मशीन डोनेट करने का फंडा जो है वो, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। करेक्ट। वो कैसे होता है कि इतना बड़ा डेटा सेंटर है, इसकी प्राइस कितनी होगी, मिलियंस ऑफ डॉलर। मेरे को प्रोसेसिंग करना है, फिर भी पहले वो बायोटेक्नोलॉजी में आया था नहीं क्या, मॉलिक्यूल DNA का सीक्वेंसिंग, DNA सीक्वेंसिंग करने का है। DNA सीक्वेंसिंग करने का था साइंटिस्ट लोगों को, पहले Amazon नहीं था तब, नहीं तो AWS का क्लाउड यूज करके कर सकते। लेकिन AWS में सपोज यहाँ पे 1 लाख सर्वर्स है या 10 लाख है,
10 लाख भी कम पड़ते हैं इसको। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इतनी प्रोसेसिंग पावर लगती है कि 10 लाख भी कम पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या आइडिया किया कि सब जितने भी लोग हैं जो वॉलंटरीली अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, सो मिलियंस ऑफ लोग हैं, 10 लाख कुछ भी नहीं है, 10 लाख बोले तो 1 मिलियन हो गया, राइट। 100 मिलियन 200 मिलियन पीपल ने खुद के मशीन्स पे सॉफ्टवेयर डाला एक डीएनए सीक्वेंसिंग का, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वो जो डेटा है वो सीक्वेंसिंग के लिए एक्चुअल डेटा रहता है डीएनए का, फिर वो कट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको, सब वो सीक्वेंसिंग करके डेटा वापस जगह पे लाते हैं। तो इसमें आप डोनेट कर सकते हो आपकी मशीन। तो ये लैपटॉप है, इसने अगर बोला कि मेरा लैपटॉप का सीपीयू यूज करो आप और इतनी रैम यूज करो, तो ये इंटरनेट का तो कनेक्टेड ही है, तो उनका सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएगा ऑटोमेटिक, या डालना पड़ेगा, उनका डेटा आ जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इतने 100 मिलियन कंप्यूटर्स मिल गए उनको फ्री में। अब बिटकॉइन में कैसा है, बिटकॉइन जनरेट होते हैं उससे। तो ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन आपने जितना भी माइनिंग करने दिया ना उनको, मतलब सीपीयू यूज करने से उतने पैसे जनरेट होते हैं उससे, उतने पैसे मिलते हैं अपने को। लेकिन डीएनए सीक्वेंसिंग इज अ पब्लिक इनिशिएटिव, वो तो फ्री में देना पड़ता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया ना, ये जो सर्वर्स है ये प्राइवेट सर्वर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं देता, नहीं तो सिक्योर नहीं रहेगा डेटा। फिर तो अपने को बोलेंगे फिर कि तुम सिक्योरिटी बोल रहे हो और किसी की भी कस्टमर पे कहीं पे भी डेटा जा रहा है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन है? डेटा सेंटर वगैरह समझ गए? यस। डेटा सेंटर के फोटो देख लेना कभी हाँ गूगल पे सर्च करके, तो इस पे भी बहुत कंप्लेंट कर रहे लोग, बहुत पोल्यूशन करता है ना ये। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने समंदर के अंदर डाला है कुछ डेटा सेंटर हाँ in order to save on heat and energy and all. राइट। तो वो बोलते हैं, तो उनका पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होता है ना, या पोल्यूशन के कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, उधर बहुत सारे लोग आते पूरी दुनिया के, और वो आते फ्लाइट से। वो उसका मतलब वो कॉन्फ्रेंस लेने के लिए भी कार्बन प्रोड्यूस करते हो, कार्बन कम करने का कॉन्फ्रेंस है वो। चोरी के साथ ऐसा हुआ था। हाँ IPCC राइट। क्लाइमेट चेंज। Jayesh, another question, I mean, might be a stupid one, but अगर कोई client ये पूछता है कि why can you know, I would like you to host this on Google or Azure. He can convince you, तो you can ask me. If he can convince कि Google ही चाहिए उसको, why? If he has some reason, then it will make sense. हाँ, so Reason नहीं रहा तो फिर क्या को AWS? वो तो मैं of course I'll stick to my platform wherever, but अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरा और भी 50 चीजें हैं जो Google पे हैं, my entire IT team is much more comfortable with Azure or Google, so can you do that? उसका IT टीम का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, हाँ, इसलिए वो भी पॉइंट नहीं आएगा। नहीं अगर वो उस तरह से इंसिस्ट करता है हाँ ना, तो बोलेगा तुम्हारा IT को हाथ भी लगाने का, दिस इज आवर IT, ओके, लेकिन उसको ऑन प्रेमिस वर्जन चाहिए। ऑन प्रेमिस का रहेगा हाँ ऑन प्रेमिस का मैं आपको पूछने वाला था। तो अपन इसमें लाते हैं उसको नॉन फंक्शनल में, ठीक है। तो ऑन प्रेमिस पे आएंगे ना तब वो बात करेंगे ठीक कि गूगल क्यों, जान ठीक है। ये हुआ अमेजोन पे, अपना सॉफ्टवेयर अमेजोन पे रन होता है, ठीक है, AWS पे, तो बहुत सिक्योर है। सिक्योरिटी का पॉइंट हो गया, स्केलेबल का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया। और उसमें वो भी डिस्कस कर लिया आपने, HIPAA कंप्लाइंट है, TLS 2.0, वो भी सिक्योरिटी में आएगा। हाँ, तो HIPAA HIPAA नहीं है, HIPAA, हाँ, लॉन्ग फॉर्म पता नहीं, लेकिन हेल्थ केयर में यूज होता है। हेल्थ केयर, देयर आर अमेरिकन लॉज, आई डोंट नो जस्ट अमेरिका और यूरोप, देयर आर लॉज। This is just US specific. So that law is called HIPAA, and if you are compliant with that law, it is called, our software is HIPAA compliant. HIPAA compliant है क्या, ये पूछने वाले लोग अपने को, US वाले स्पेशली। इंडिया में भी लोगों को मालूम पड़ रहा है अभी कि HIPAA compliance नाम की चीज़ है US में, तो इंडिया में भी पूछते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर HIPAA compliant है कि नहीं है, राइट? तो आंसर क्या है? यस। so the full form is Health Insurance Portability and Accountability Act. तो अकाउंटेबिलिटी मतलब वही सिक्योरिटी वाला हो गया। पोर्टेबिलिटी का तो थोड़ा अलग मैटर है। हाँ, वो अपने को डील ही नहीं करना है, बट इफ वी आर HIPAA compliant, that means we have ticked many boxes. राइट। So that तो is how- HIPAA कंप्लाइंट का काफी लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज सम कंप्लायंस
स्टेप्स या फिर ऑडिट सर्टिफिकेशन है, कोई Standards प्रोसेस है या गवर्नमेंट ऐसा कुछ है Standards approve है। वगैरह था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर्चुनेटली। हम खुद डिक्लेयर कर सकते हैं कि वी आर HIPAA कंप्लाइंट। हाँ, वो तो AWS HIPAA compliant है, we are hosting on AWS। HIPAA कंप्लाइंट है, लेकिन कुछ जो मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है। नहीं तो इनका भी, इनके पास भी कुछ प्रूफ नहीं है AWS के पास। HIPAA कंप्लाइंट कैसे है, तो उसकी लिस्ट में लिखा है कैसे कंप्लाइंट है वो। नहीं, उन्होंने किया होगा Proof ऑडिट नहीं। वगैरह, Amazon ने जरूर ऑडिट करके लेते हैं वो दिखाने के लिए दूसरे यूजर को कि हमने ऑडिट करके लिया है, हाँ लेकिन उसका जरूरत नहीं गवर्नमेंट को या किसी को हाँ कि सर्टिफिकेट दिखाओगे। हाँ। ऐसा कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं इसके लिए। हाँ, so that is called accreditation. Basically, there are two ways. One is certification process. I'm sorry, I have done this in my previous job. So one in which you get a certificate. ये certified है. The second is accredited. That हमने आया ऑडिट किया, सब देखा, नहीं थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी। आके देखा, everything is fine. जो as per the laid down rules and guidelines, I have cleared it that they are following all the processes, steps in order to secure the data and privacy of the data. ओके, तो They वो will never get a certificate, you will get an accreditation, that's about it. ठीक है। Not even an accreditation, that's a different word, I'll get back. ओके, I'll- तो I'll- whatever that is, but that is not required, Correct, that is not. but it is good to have। Yes. किसी ने बोला कि प्रूफ क्या है, हाँ, कोई मांगता नहीं प्रूफ। HIPAA कंप्लाइंट है कि अपना आंसर यस है, क्योंकि HIPAA कंप्लायंस में जो चीजें लगती है एन्क्रिप्शन वगैरह वो अपन ने किया हुआ है। Correct. कुछ चीजें हैं जो नहीं है, लेकिन वो वी आर वर्किंग ऑन दैट। correct, I got the word, it's called attestation. Not Attestation, हाँ, accreditation. self attestation जैसे। Attestation. So a third party attests that this is done, and generally we never used to share the attestation with, the entire attestation with our end clients. एंड क्लाइंट के साथ शेयर कभी नहीं, वो हमारे को जैसे इवन EY ने किया था, KPMG ने किया था, डेलॉयट ने किया था, तो उनका एक लेटर आता है जो उनके पार्टनर से साइन किया होता है, जो सिक्योरिटी कंप्लायंस और उसमें ऑडिट में रहते हैं, वो खाली अगर बहुत प्रेशर करता था कोई, तब वी यूज्ड टू शेयर। कभी तो अपने को भी करना है, उसका खर्चा बोलते हैं $90,000 तो HIPAA कंप्लायंस का सर्टिफिकेट। अपन लोग ISO कर सकते हैं to start. ISO का भी अपन ने करके रखा है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया है अपने। हाँ, तो उसका रेडीनेस चेक वो अपन ने बना के लिया है हाँ। थर्ड पार्टी से। हाँ, तो कर सकते हैं, जब तक क्लाइंट नहीं मांग रहे तब तक वी आर ओके। हाँ, जब क्लाइंट मांगेंगे तब तक उतना टाइम भी हो जाएगा कि अपना रेवेन्यू भी उतना रहेगा कि उसमें से स्पेंड कर देंगे। तो द रीजन आई एम टेलिंग यू इज कि ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, लेकिन इसकी पेनल्टीज बहुत है। जब अगर ये डेटा तुम्हारे पास हेल्थ केयर का डेटा है किसी कस्टमर का, और तुम वो ऐसी जगह पे रख दिया तुमने जहाँ से वो चोरी हो गया, तो यू आर लायबल फॉर हेफ्टी फाइन्स। which can run into बहुत ही ज्यादा बड़ा फाइन है उसका, वो भरना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो कंप्लेंट हो, सर्टिफिकेट भी अगर तुम्हारे पास है तो भी इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला चोरी। ये तो चोर एप्पल से भी पुलिस चोरी वाला। हुआ है अभी डेटा, एप्पल का डेटा गया, सोनी का गया। सबका जा रहा है डेटा, वो तो सर्टिफाइड है, सब है, अटेस्टेड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ क्लाइंट अपने को मांग सकते हैं ऐसा कोई थर्ड पार्टी। दिस इज जस्ट हेल्थ केयर ना, दिस इज ओनली फॉर हेल्थ। और यूरोप का जो आप बोल रहे थे GDPR। GDPR दैट इज पूरा मतलब नॉट जस्ट हेल्थ केयर। क्या ये दिस इज ग्लोबल। हाँ, दिस इज फॉर अक्रॉस ऑल वेरेवर देयर इज प्राइवेट डेटा प्राइवेसी। तो GDPR compliant is also similar to HIPAA compliance, but this is applicable to the non-healthcare domains also. तो आर यू GDPR compliant? इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसका आंसर यस है अभी। ये अपने को कोई बोलता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है GDPR। आएगा, if we आएगा, step into जब Europe, कॉर्पोरेट्स आएंगे बड़े तो वो बोलेंगे। Definitely. ये भी अपने को कोई पूछता नहीं है अभी, ये भी आएगा। हाँ, पक्का आएगा। GDPR तो आएगा। द मोमेंट वी गेट इनटू फाइनेंशियल सेक्टर इन हाँ, तो ऐसे दो तीन ही सेक्टर्स है, हाँ, फाइनेंशियल है हाँ, और हेल्थ केयर है, जिधर ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। immediately अभी कौन सी बैंक की बात कर रहे थे हम? किसी बैंक के साथ बात कर, यू आर टॉकिंग टू DBS ना? DBS तो उन्होंने बोला क्या? DBS ने सिक्योरिटी का बोला है। डेटा सिक्योरिटी का बोलते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ डेटा GDPR सिक्योरिटी का- सभी लोग बोलते हैं, GDPR का कोई बात ये बात नहीं करते वो लोग। GDPR का कोई बात नहीं है। एनीवे सिंगापुर बेस्ड ये क्या है, ये सर्टिफिकेशन है क्या? जैसे अपने इधर iOS का सर्टिफिकेशन है, वैसा ही उधर का लोगों का गवर्नमेंट का दिस सर्टिफिकेशन इज अ रिक्वायरमेंट, लॉ है। ये अटेस्टेशन है, नॉट तो सर्टिफिकेशन। उसका सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट इज नॉट द लॉ, बट दिस इज द लॉ। सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट सिर्फ एक्स्ट्रा एक अपने को दिखाने के लिए है। These are मतलब it is like it is mandatory, not voluntary.
इसका ये compliance- करना मैंडेटरी है ना, Yes. लेकिन वो मैंडेटरी करेंगे कैसे? वो जब फाइन करते तभी समझता है कि कैसे मैंडेटरी वो। मतलब मैंने बोला कि ईपा कंप्लेंट आप है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? Yes. मैंडेटरी बोला तो क्या बोलेंगे? No. तो भी ऐसे बोलेंगे ना कि और कुछ बोल नहीं सकते ना, ये जैसे तो बोल बचा ही सकते नहीं हैं। है। लेकिन जब डेटा चोरी हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? तब कुछ बोलने का नहीं, तब पैसे भरने पड़ते। ऐसा प्रोसेस है। अभी ये मैंडेटरी क्या है इसमें एक्चुअली? हाँ, सर्टिफिकेट होता तो फिर वो अलग बात है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू आर नॉट ईपा कंप्लाइंट, ऐसा नहीं है। So the same thing is with GDPR as well कि कुछ ऐसे आई clear हैव टू फाइंड आउट दैट आई डोंट नो राइट नाउ। It is मतलब ये तो लॉ है, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। इसमें भी चॉइस नहीं है। नहीं वो मतलब भी लॉ है, वो तो ये बहुत भी बड़ा law लॉ है, है। ये तो बहुत खतरनाक लॉ है। ये तो सिर्फ यूरोप ज्यादा ये कर रहा है। हाँ। ये तो यूएस का एकदम, क्योंकि ये प्राइवेट का पेशेंट का डेटा है ना, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है। लेकिन दोनों इसमें सर्टिफिकेट है क्या? वो इसमें तो नहीं है सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी कर सकते हैं ऑप्शनल। इसमें पता नहीं है कि एक्चुअली है क्या। I'll share few articles with you on GDPR. बेसिकली जब तक पकड़े नहीं गए तब तक। हाँ, पकड़े नहीं, वैसे ही हो। मतलब जैसे हमारा वो PCI compliance वाला था कि ये है क्या ये क्या ये ठीक है, so all these things are done, so we are compliant. तो वो PCI सर्टिफिकेट था For ना, that we do not. PCI is for the payment gateways and all. हाँ, Big time. financial. Financial, yeah. वी आर पीसीआई कंप्लाइंट ना, तो वो कौन बता रहे? वी आर पीसीआई कंप्लाइंट, ये किसने बोला है? The certification. थर्ड पार्टी ने बोला, सर्टिफिकेट दिया है आपने को। तो दैट वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। तो सर्टिफाइड है अपन पीसीआई से, PCI DSS तो करना ही पड़ा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग नहीं करना। कर पाएंगे आप। For security, one other question की AWS सर्वर कुठे लोकेशन? इंडिया, US, जसं स्पा बोलला की साऊथ आफ्रिकामध्ये पाहिजे. जियोग्राफी, जिओग्राफी. तो पूरे वर्ल्ड को AWS ने ऐसे डिवाइड करा है जोन में, अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। तो अपना सर्वर जो है ओरेगॉन में, US। अब इंडिया वालों का डेटा जो है अपना CLR का, वो US में बैठता है। अगर उसने बोला कि हमको US में नहीं चाहिए डेटा, या इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ का डेटा वहाँ, तो अपने को यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा इंडिया में। इंडिया में मुंबई में है AWS का सर्वर। पहले इंडिया में नहीं था, काफी साल तक वो सिंगापुर में था, क्लोजेस्ट वाला सिंगापुर था। तो अपना डेटा अभी US में जा रहा है। टू बी फ्रैंक, मतलब दैट इज द फैक्ट राइट नाउ। साउथ अफ्रीका वाले बोल रहे हैं कि हाँ उनको डेटा साउथ अफ्रीका में चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अपन ने ऐसा अगर चाहिए होगा तो अपने को पैसे लगाने पड़ेंगे। And what is the general cost? I have no idea about it. अगर मेरे को साउथ अफ्रीका में एक सर्वर लेना है, सर्वर स्पेस, तो अपन ये जो अपना सर्वर है ना अभी अपन 40,000 रुपये पर मंथ भरते हो सर्वर का। जो अपना AWS का कॉस्ट है वो 40,000 रुपीज पर मंथ है करेक्ट इंडिया में। तो उससे फर्क नहीं पड़ता US वाला ये इंडिया में सस्ता है क्या पता नहीं मिलता, ऐसा कुछ है नहीं शायद। उनकी कॉस्ट तो सेम है सभी, तो वो यूज पे डिपेंड है। हाँ, वो तो यूज के ऊपर है, दैट आई अंडरस्टैंड। मान लो ये क्लाइंट अभी स्पा के लिए अगर मेरे को साउथ अफ्रीका में सेटअप करना था, वी नो अप्रोक्सीमेटली व्हाट हिज सबमिशंस एंड यूजेज। तो वही अगर 40,000 ही पकड़ लो, 40 के रुपीज, ये एक्चुअल कॉस्ट है अपने को रन करने का। और इंस्टॉल करने के आपने 2-4 लोग बैठेंगे, सब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टेंसेस वगैरह उसका चार्ज रहेगा, डिप्लॉयमेंट चार्ज। अपना कॉस्ट कितना है और प्राइस कितना है, इसमें डिफरेंस है। करेक्ट, दैट आई अंडरस्टैंड। डिप्लॉयमेंट का कॉस्ट कितना रहेगा आपने का, तो मैन आवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितना मैन आवर्स हमने डाला। हाँ तो 2 दिन में कर देगा अनुज, तो 16 घंटे 16 into $40 भी लगाए तो $400 कितना होता है, 800 माइनस 64 $640 खर्चा है अपने को। बराबर। तो इसका 40,000 पर मंथ, तो इसको ये कॉस्ट है, प्राइस क्या लगाना है वो वैल्यू पे डिपेंड है। हाँ, so I mean we cannot sell this, but we will have to bake this cost into the offering to the client. बेक करना पड़ेगा, लेकिन कितना, इससे कम नहीं। हाँ, इससे तो कम नहीं, ये तो मेरा मिनिमम बेयर मिनिमम कॉस्ट है, तो लेना ही ना उससे मुझे। कि अगर वो वैल्यू insist बेस्ड करता करना है, तो वैल्यू बेस्ड का मीनिंग क्या है, इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है उस कॉस्ट का, करेक्ट, कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जीरो रिलेशन, सिर्फ इतना ही है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाँ यही रिलेशन है सिर्फ। तो समझ गया। तो इसका $10,000 भी हो सकता है कॉस्ट, करेक्ट, तो इसका रिलेशन क्लाइंट के साथ ज्यादा है। ट्रू। स्पा नहीं देने वाला है अपने को $10,000, राइट।
तो उसको अपने को $1000 $2000 ऐसा कुछ तो बोलूँगा बता के लेना पड़ेगा। हाँ, तो it will be baked in a different way into the proposal rather than individually. समझ गया, got it. यहाँ पे ये पावर बैकअप नहीं, अच्छा हम लोग पावर बैकअप जनरेटर लगने वाले कल। सो GDPR भी अपने को सोचना पड़ेगा। हाँ, this is to be हाँ, we have to, because I see 6 to 7 months time में you will get good traction or you will get good traction in European market as well. I see, ऐसा मुझे लग रहा है, तो फिर वो GDPR हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है। Let me do some research. मैंने पहले भी थोड़ा पढ़ा है GDPR, so I will share some informative articles. Let me take a look. So right now we are discussing data security, right? तो data security के questions पूछेंगे तो ये आंसर सब आने चाहिए। Security में anything else is there? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका इंटरनली क्या सिक्योर है, तो SSL and TLS, if you guys can read around SSL and TLS, that will be of help. That will be of help, not help. कि SSL कैसे काम करता है, TLS कैसे काम करता है, थोड़ा टेक्निकल है, बट if you have knowledge it will help. इसमें deep में कोई जाता नहीं है आज तक। You never know. अभी जैसे कि अपना सिटी कॉम से जो बात हो रहा है, so he is getting in his IT team. So हो सकता है we will be grilled around these questions. लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि वो SSL तक जाता है, बैंक वाले को पूछेंगे ना। पूछेंगे। can have that But that can be diverted to the technical team, no? And we can always tell them that technical team will elaborate on नहीं it. तो Correct, जो but we SSL cannot- वगैरह तो frontline वाले भी बोल रहे We हैं। cannot go blank, ना? We cannot go. When you are Yes, doing yes. selling, we cannot go blank. Agreed, fully हाँ, agreed. तो उसके लिए मैं बोला कि basic knowledge will be always good. right. The SSL, TLS, so that is also good point. We will include that also here. What is SSL / TLS? क्वेश्चन क्या करेंगे वो कि तुम्हारा डेटा सिक्योर कैसे है, राइट? Encryption के अराउंड क्या है, क्या हम मतलब तुम कंप्लायंट हो वगैरह सब हो, बराबर है, सर्टिफिकेट भी हो तुम्हारे पास। सिक्योरिटी मतलब डेटा कोई चुरा सकता है क्या तुम्हारा? हाँ, तो उसका आंसर ये है कि ये जो मोबाइल है ना आपका और ये क्लाउड है, correct. उस बीच का जर्नी तो इधर से जो डेटा जा रहा है ना अपना, ऐसा जाता है ना डेटा इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में, और यहाँ जाके डेटाबेस में बैठ जाता है। तो यहाँ से डेटा यहाँ तक जाने तक इसको जो डेटा है इसको इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने से क्या होता है, वो डेटा किसी ने चुरा लिया तो उसका यूज नहीं होता। मतलब ऐसा इनकोडेड लेटर लिखा तुमने, लव लेटर, किसी ने पकड़ लिया तो उसको समझेगा नहीं, लेकिन सामने वाले को समझेगा लेटर। ऐसा इनकोडिंग तुमने करके रखा है, उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो ये डेटा इसको समझता है और इसको समझता है, बस। बीच में से किसने चुराया तो फिर समझता है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको SSL बोलते हैं। अब ये डेटा यहाँ पे जाके बैठा है, ये डेटा अगर किसी ने हैकर ने उठा लिया तो नहीं, तो इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। ये डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में। इससे क्या होता है कि किसी ने चुरा लिया तो उसका यूज नहीं होता। मतलब ये दोनों जगह एक ही चीज हो रही है, इंक्रिप्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा अपन डालते हैं ना फॉर्म में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका इंक्रिप्शन होता है, फिर इधर जाता है, यहाँ पे डिक्रिप्शन होता है। वापस वैसा ही स्टोर होता है। हाँ, तो ये बीच में बात भटक जाता है, वापस उधर वैसे ही स्टोर। हाँ, पहले इंक्रिप्ट होता है फिर डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट होने के बाद वापस वो जो पहला डेटा है वो आता है, स्टोर होता है, फिर से इंक्रिप्ट हो जाता है। So we are using encryption to protect, say, like secure our data, and we are using SSL to protect data in transit. दो टाइप का डेटा है, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा एट रेस्ट। तो डेटा इन ट्रांजिट जब जा रहा है तुम्हारा डेटा तो हम SSL के थ्रू भेजते हैं, सिक्योरली जाता है। और जब डेटा तुम्हारा स्टोर्ड होता है तो हम उसको एनक्रिप्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से किसी ने उठा लिया तो भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज SSL। तो ये पूछ सकते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली करना इतना ही है, बातें ये बहुत बड़ी बड़ी करनी पड़ती है, HIPAA कंप्लायंस ये वो। करते क्या है, हम डेटा इंक्रिप्ट करके रखते So we transit data through SSL
and then we again encrypt स्टोर डेटा data भी again encrypted, जिससे कि अगर वो हैक भी हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, इनकोडिंग रहेगा। उसके पास हाँ हैकर के पास वो की होना चाहिए तभी वो देख सकता है। अभी तो मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह से ये एसएसएल वगैरह तो क्वांटम कंप्यूटिंग वो डिफरेंट इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक गॉड लेवल जस्ट फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उसका सिक्योरिटी के साथ नहीं, मतलब ये फिर एन्क्रिप्शन काम नहीं करेगा ना, इट कैन डिक्रिप्ट इट इन अ मैटर ऑफ मिनी माइक्रोसेकंड्स। अच्छा, स्पीड की वजह से, कंप्यूटिंग पावर की वजह से अलग अलग कीज ट्राई करके हो सकता है जितना फास्ट आया तो उसके ऊपर कुछ दूसरा सोल्यूशन निकलेगा ना, फिर वो की बड़ी करनी पड़ेगी, फिर वो कंप्यूटिंग कम हो जाएगा। हाँ सर। ओके, सो डेटा सिक्योरिटी में ये सब कंप्लायंस वाला पार्ट है, और जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो ये दो चीजें कर रहे हैं। हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट, दोनों को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, ऐसा खुला नहीं रखते। So scalability, security, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कस्टमाइजेशन। 156 कस्टमाइजेशन है अजून काय आहे? यूजेबिलिटी। कस्टमाइजेशन का आंसर सबको पता है, इजी टू कस्टमाइज है और इजी टू चेंज भी है, दैट इज इवन बिगर एडवांटेज। यस बनाते फास्ट हो तो, लेकिन चेंजेस आए तो वो भी फास्ट होते हैं। करेक्ट कस्टमाइजेशन प्लस चेंजेस प्लस चेंज कस्टमाइजेशन होती है, कस्टमाइजेशन होता है दोनों टाइप। यूजेबिलिटी मतलब हमने बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया है प्रोडक्ट। अगर तुम जाके सर्विस नाउ, सेल्स फोर्स इनका देखते हो, ऐप बिल्ड करने जाओगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड इट। I can give you live example of Salesforce in KPMG. I mean, was the no, not Salesforce. What was that platform? SAP. ऐसे वो तो उससे भी बेकार है। और बाप रे बाप क्या बनाया था उन लोगों ने, उनको खुद ही नहीं पता चला। Bloody they did UAT, internal UAT for 3 months, and still the adoption rate was 15% out of 10,000 people. राइट, इतना गंदा, इतना गंदा। तो ऐसी सिचुएशन सेल्स फोर्स की भी है, सर्विस नाउ की भी है, जो 15-20 साल के ऊपर से कंपनीज है ना। वो चलते कैसे हैं? मेरे को तो वही समझ में आता कैसे वो मैं उसके सेल्स वाले से मिलना चाहता हूँ। क्या टोपी पहनाता है वो नहीं, वो क्या करते हैं, चला सेल्स वाले क्या करते हैं, क्या टोपी पहनाता है, $1 मिलियन का अकाउंट बेच के आते हैं एक बार में वो। Yes. उसके बाद $2 मिलियन कस्टमाइजेशन का। करेक्ट मैन, एंड इट्स एब्सोल्यूट शिट। I mean, to be very frank, सेल्सफोर्स का देखा था ऑरेंज प्रो में, वैसे ही रोना था। SAP का देख लिया मैंने KPMG में, वैसे ही रोना था। तो BMC वगैरह ना, गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह, ये सब SAP यूज करते हैं। हाँ तो उसमें से एक छोटा सा पार्टी यूज करते हैं, बाकी छोड़ देते वो कुछ बस एग्जैक्टली यू आर नाउ यू। हैं। और जो छोटा सा पार्ट है वो अपने सिस्टम में तो 1 मिनट में बन जाता है, इतना इजी वाला पार्ट यूज करते हो। So Orange Pro में they had bought this Salesforce license which was costing them some $70,000 USD or $55,000 USD per month. 6 महीने में क्या बन के निकला था? टाइम शीट। ऑब्वियसली किस लिए हम बिलिंग करेंगे? अरे Salesforce बिलिंग करने के लिए सिर्फ टाइम शीट के लिए नहीं है बॉस, तुमने खरीदा हाथी और अभी उसको यूज कर रहे हो हैमस्टर की तरह, एग्जैक्टली। जो गोल गोल एंड दिस इज वेरी गुड सेलिंग पॉइंट ना, बोलते वक्त है ना, बोलना है कि जो सेल्स फोर्स कर सकता है, सर्विस नाउ कर सकता है, SAP कर सकता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली कैन डू, और इट कैन डू बेटर देन देम, बिकॉज उनका तो मोबाइल पे चलता भी नहीं है। उन्होंने मोबाइल के लिए बनाया नहीं था, वेब के लिए बनाया। अब वो बना के 40 साल हो गए उनको, वो पूरा खराब हो चुका है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो अपना जो यूजेबिलिटी का पॉइंट है ना यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इजी टू यूज। तो अफोर्डेबिलिटी भी आ गई इसमें, कॉस्ट भी अपनी कम है। सेल्स फोर्स का लाइसेंस $40 पर यूजर, $40 तो इसके लिए बोला था उसने, और मोबाइल का $150 है उनका पर यूजर। $150 इज 15,000 रुपये पकड़ लो, 15,000 रुपये महीने का एक यूजर का। वी आर सेलिंग एट 700 रुपीज इन इंडिया। तो इंडिया के लिए तो नो ब्रेनर है वो, तो इट शुड सेल लाइक केक, इसलिए तो फटाफट कस्टमर चाहिए, और उनके इसमें होता भी नहीं है। यूजेबल है अपना सॉफ्टवेयर, ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, सिक्योर है, स्केलेबल है। एनी अदर पॉइंट भी नहीं।
फास्ट रैपिड डिप्लॉयमेंट. क्या कॉस्ट रैपिड, हाँ वो फास्ट बराबर है. कस्टमाइजेशन में ही वो प्रॉपर्टीज है, फास्ट, इजी टू चेंज, और फिर यहाँ पे प्राइसिंग है. इंडिया में बोलना है कि इंडियन फ्रेंडली प्राइसिंग रखा है. हमारी कंपनी यूएस में भी है, $40 में बेचती है लाइसेंस. इंडिया में $10 से भी कम है. वो भी निगोशिएट होने का 500 रुपये हो जाते, 300 हो जाते, 200 हो जाते. तो इतना अपन कॉस्ट अफोर्डेबल दे रहे हैं हमको सोल्यूशन. ट्रेनिंग से एक क्वेश्चन विचार, ट्रेनिंग यूजेबिलिटी में आ गया. इजी टू यूज है तो ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता. SAP का 3 महीने वही चलते रहता है, ट्रेनिंग चलता है. ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, नहीं तो समझते नहीं क्या करने का. उसके बाद भी उसके एडमिन को नहीं मालूम होता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है. यूजर को तो वो नहीं मालूम. ये तो एग्जैक्टली वेरी गुड पॉइंट्स. राइट. एडमिन को क्या हो रहा है उसको इजी नहीं टू यूज मालूम. होने की वजह से वही हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है easy. आणि प्राइसिंग सांगत असताना इंडियामध्ये या फिर प्राइसिंग का जब बोल रहे हैं अपन, तो जब बल्क यूजर्स वगैरह उसके ऊपर डिस्काउंट है. बल्क यूजर है, क्वार्टरली एडवांस पेमेंट, हाफ ईयरली एडवांस पेमेंट, उसके हिसाब से हम आपको कम करते जाएंगे. आप जितना जल्द आगे पैसा दे दो उतना हम खुश है. सस्ता और इंडिया कैसे ग्रोइंग है ना अभी, आज वो इतना कम दे रहा है, कल जाके अपने को ये लोग बड़ी कंपनी ज्यादा देंगे ना पेमेंट, जब वो डिपेंड हो जाएंगे अपने ऊपर. So Nihal, जितना whatever I said, all those things, you have to watch it again, Yes. and I'll ask you questions, okay? Right. and subscribe the channel. Please subscribe to the channel. And वो नीचे वाला like का बटन दबाइए. बेल आइकन दबाना मत भूल. बेल आइकन दबाना मत वो दबाना मत भूलो. That is very good. In fact, just on a serious note, if we keep on enhancing the way your vision is, it can become a full-fledged, ERP kind of a background. Full-fledged ERP बना सकते हैं. वो तो ऑलरेडी है. मतलब at that. तो अपन वैसा सेल क्यों नहीं कर रहे अभी, क्योंकि पीपल आर क्या बोलते हैं उसको, ये हो गए ERP वगैरह बोला ना, डर की भाग गए लोग. क्यों इतना सड़ाया है ये बड़े बड़े वेंडर्स ने. सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट वही हुआ है. इतना टोपी पहनाया है ना अच्छे अच्छे लोगों को. ये जवान छोकरे जाते हैं अच्छा सूट पहन करके, उधर जो बैठता है वो नियर रिटायरमेंट बंदा होता है, उसको टेक्नोलॉजी से कुछ ये नहीं होता है. ऊपर से ऑर्डर आता है कुछ तो चाहिए, हाँ इतना है पैसा, हाँ भाई लगा दो जल्दी. एग्जैक्टली उधर ही सब सड़ा है. वैसा वो है ना, तो प्रॉब्लम हो गई है उससे, और वो अपने लिए एडवांटेज है. हाँ दैट्स व्हाट ब्रेंडन वाज टेलिंग मी. यूएस मार्केट का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है. All those people and decision making, they are near retirement. They have no connect with what has happened in the last 10 years with technology, Right. and they are decision makers. So now you have come to the strategy part. उसकी भी बारे में बात करते हाँ, हैं. how do you go about selling a fungible product? उनको देखता है इतना अच्छा इतना ही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, झोल है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन दिख ही नहीं रहा है उनको. राइट. तो शॉक हो जाते हैं उनको लगता है. अपनी वेबसाइट भी देखते हैं ना तो सिंप्लीफाइड है बहुत. हाँ अपना फर्स्ट पेज है ना, ड्रैग ड्रॉप दिखाता है. करेक्ट. कॉम्प्लेक्सिटी पीछे बहुत है, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट, मतलब इसमें आई नो. करने में बहुत डिफिकल्ट क्या है ये प्रोडक्ट, लेकिन सामने जो रखा है वो एकदम सिंपल है, क्योंकि वो सिंपल बनाने के लिए पीछे कॉम्प्लेक्स है वो. क्योंकि क्या है, अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, उधर मोबाइल ऐप तो ऑटोमेटिक बन रहा है ना, पीछे बहुत काम हो रहा है ना. हाँ, और every bit and piece of technology and code is talking as per my liking. एग्जैक्टली As per my liking. मेरे को क्या चाहिए उसके हिसाब से बात कर रहा है. वैसे बात कर रहे हैं, और तुम कोडिंग में नहीं बता रहे उसको. नहीं. हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता. Correct. दैट इज द ब्यूटी. तो अपना स्ट्रेटेजी है. कोई भी बड़ा मार्केट, जितना बड़ा मार्केट उसको टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट. टैम इज अ डॉलर नंबर. जैसे अभी $98 मोबाइल का करंट मार्केट है, टोटल एड्रेसेबल बिलियन. So $98 billion is the total addressable market available for mobile enterprise mobility. जो अगले 5 साल में, मतलब कुछ 2 साल हो गए, 2-3 साल में will be $256 billion industry. मोबाइल लो ना, we are playing in this market.
गुड न्यूज इस मार्केट में प्लेयर्स जो है वो पुराने प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। SAP है, सेल्सफोर्स है, सर्विस नाउ है, क्या वर्कडे, कौन सा वर्कडे, WORKDAY, वर्कडे इज नाउ कमिंग अप बिग टाइम। वो यूके वाला, यूके में है वो, यूएस का है वो, US का है। और होंगे ऐसे बड़े बड़े। हाँ ऑरेकल है, ऑरेकल बहुत बड़ा प्लेयर है। ओके, तो ये जो प्लेयर्स है इनका क्या प्रॉब्लम है? ये सब है ना एटलीस्ट 10 years old है, एटलीस्ट these companies, most of them, या फिर either they are very old or they are still in the web mindset. And their legacy product is so thick now that even they try, they cannot have everything on mobile. मोबाइल वो ला नहीं सकते। Impossible. क्योंकि आफ्टर थॉट है ना वो, हाँ। बाद में मोबाइल पे लाना इज डिफरेंट थिंग और मोबाइल से स्टार्ट करना इज डिफरेंट थिंग। And all these players which you named right now, they have built their platform buying small products in the market and integrating them. एग्जैक्टली, आज भी उसका अगर सैंडबॉक्स देखोगे तो पागल हो जाओगे, है पागल क्या, हो जाएंगे, हाँ। है क्या वो। वो सब बाय मुझे क्या बोलते हैं उसको, एक्विजिशन कर करके। सेल्सफोर्स तो पूरा एक्विजिशन भी बना हुआ बहुत बड़ा एक्विजिशन है उनका, बहुत सारे एक्विजिशन हाँ। एक्विजिशन करके बड़े हुए प्रोडक्ट तो कॉम्प्लिकेटेड हो गए। शॉर्ट में बोला जाए तो ये है ना हाथी बन गए सब, दे आर एलिफेंट्स एंड एलिफेंट्स कैंट डांस, राइट? एलिफेंट नाच नहीं सकता, एलिफेंट ऐसे ही चलता है ऐसा आराम से, उसको डायरेक्शन भी इजीली चेंज नहीं होती उसकी। तो ये उनका ड्रॉबैक है, बिकॉज दे आर बिग। स्मॉल एंड चीटी तो ऐसे टर्न मारते ना फटाफट, तो वी आर लाइक दैट, तो दैट इज आवर एडवांटेज। और हिस्टोरिकली इफ यू लुक, हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब IBM बड़ा था, उस दिन बताया था ना IBM का स्टोरी, तो IBM वो इतना बड़ा, ये इतना सा माइक्रोसॉफ्ट, 7 लोग 8 लोग, IBM इतना बड़ा, वो फाइट करने का तो चांस ही नहीं था। लेकिन ये इसके पास जो ड्रॉबैक है वो इसके पास नहीं था ना। करेक्ट। ये स्ट्रेटेजी ऐसा मूव कर सकते हैं, खट 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 खट, इंडस्ट्री चेंज हो गया, ऐसा 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 फटाफट। ये हाथी जो है ऐसा स्टेबल ही रहता है। और ये जो हाथी है ना IBM, ये कुछ तो भी 1990s में शायद नीचे गया था, कब 85-90 में डूब गया था IBM। उसके ऊपर एक बुक भी आई थी उसके CEO की, Who Says Elephants Can't Dance। वो बुक है उसका, that बुक का नाम वो है। हाँ, तो वो CEO था नया IBM का, जिसने वो बुक लिखा है। वो बोलता है कि कौन बोलता है हाथी नाच नहीं सकता, तो इसलिए हाथी नाचने का उधर से लिया है मैंने। तो हाथी नाच नहीं सकता ये सच है, लेकिन उसने नचवाया IBM को, मतलब उसने IBM को टर्न अराउंड किया और प्रॉफिटेबल बनाया फिर से उस CEO ने। हाँ तो लेकिन उस हाथी को उसने बहुत छोटे छोटे हाथी बनाए ना, एक हाथी। वो स्ट्रेटेजी वो होती है ना कि हाँ, हाथी को strategy छोटा वही कर दो, हाँ। स्प्लिट करो, बिजनेसेस कट करो, कम करो, डिपार्टमेंट्स गायब कर दो बहुत सारे। हाँ, लुई वी गेस्टनर, क्या ऑथर, लुई वी गेस्टनर ऑथर का नाम। GSTNER ना, हाँ, जेस्टर, yeah, लुई जेस्टर। yeah। तो वो जब आया तो उसने IBM को घुमाया, टर्न किया। अब माइक्रोसॉफ्ट कितने साल से कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। मोबाइल लाया, नहीं हुआ, राइट? मोबाइल की तो पूरी लग गई वाट। फिर उसने टैबलेट में थोड़ा सा है उधर, बाद में अभी इसमें आ रहा है, वो क्लाउड में वगैरह आ रहा है ना, लास्ट नंबर है उसका, लेकिन वो आएगा ऊपर, Azure वगैरह। वो अच्छा कर रहा है, लेकिन फास्ट चेंज नहीं कर सकते बड़े कंपनी। उनको दूसरे एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे SAP किसी को भी टोपी पहना के बेच सकता है, तो अपने को उस लेवल तक पहुंचना है। तो स्ट्रेटेजी क्या है अपना, ये जो है ना, ये बबल ऐसा थिक बबल है, इसको ऐसा इसके अंदर घुस नहीं सकते ऐसा डायरेक्ट, मतलब ऐसा तू ये लेके आया सपोज ऐसा डंडा, और ये सॉर्ट ऑफ बॉल है या फिर बबल है, उसमें जाएगा नहीं है, ऐसा घुसेगा नहीं मार्केट में। तो मार्केट में घुसने के लिए, मार्केट एंट्री करने के लिए शार्प चाहिए ऑब्जेक्ट, पेंसिल के जैसा, राइट? तो बबल फूटता है। तो ये स्ट्रेटेजी कैसी है, ये पॉइंट से स्टार्ट होती है और बड़ी होती है बाद में, है ना? इसको लैंड एंड एक्सपांड भी बोलते हैं। लैंड करो पहले, फिर एक्सपांड करो, लेकिन लैंडिंग करने के लिए कुछ तो भी चाहिए तुम्हारे पास। तुम अगर SAP का कॉम्पिटिटर बन के और एक वेब वाला प्रोडक्ट बनाया तुमने, अभी और बन रहे हो अभी भी मार्केट में, वो बना के जा रहे लोग, तो अभी कंफ्यूज हो रहे लोग कि ये क्यों, ये सिर्फ सस्ता है इसलिए बेच सकते,
तुम कैसे भी लेना नहीं है, भी लेना नहीं, सस्ता है इसलिए बेचना स्ट्रेटेजी इज टोटली डिफरेंट। अपना स्ट्रेटेजी सस्ता है इसलिए नहीं है। आज अपन सस्ता बेच रहे हैं क्योंकि अपने को एडवर्टाइजमेंट या उतना नहीं है, अपना अवेयरनेस नहीं है एक्सीलेटर का, तो सस्ते में बेच के अपन लैंड एंड एक्सपांड यूज कर रहे हैं। तो लैंड एंड एक्सपेंड स्ट्रेटेजी क्या है कि तुम्हारे पास ऐसी कैसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुम लैंड हो सकते हो वहां पे। तो अपना लैंड करने का क्या है वो, उसका आंसर क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे अपन ने बनाया है। नहीं, अपना लैंडिंग स्ट्रेटेजी मोबाइल। करेक्ट। आज जितने भी इंक्वायरीज आ रही है सिर्फ मोबाइल की वजह से आ रही है, जो भी हो रहा है सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रहा है। हनी कोड और सैप डेस्कटॉप के लिए होगा, और हनी कोड जो है वो अभी मोबाइल के लिए तो अभी चालू किया है उन्होंने, राइट। ओके, लेकिन हनी कोड में कुछ भी नहीं है ना, अभी देखा क्या आर्टिकल पढ़ के स्क्रीनशॉट के लिए कंफ्यूज जरूरत नहीं। तो वो कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कंपनी आ रहे, माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट है, पावर एप्स नाम है उसका। पावर एप्स, हाँ। तो देयर विल बी कंपटीशन, लेकिन पावर एप्स में भी फील्ड अपना फील्ड ऑप्टिमाइज है। वही तो मोबाइल कहाँ पे मेक सेंस करता है ज्यादा, ऑफिस में कि बाहर? अब हनी कोड ने क्या बनाया कि जो ऐप तुम बना रहे हो स्प्रेडशीट का, वो मोबाइल पे लाया, बराबर। थोड़ा डेटा एंट्री हो जाता है उनका, वो डेटा शीट में चला जाता है, उतना होता है। लेकिन उसमें अगर तुम जीपीएस कलेक्ट नहीं कर सकते, फोटो नहीं ले सकते, ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते, तो फील्ड में क्या करोगे तुम? कुछ अलग बनाया नहीं ना। पावर एप्स पे वैसे ही है सब, ये फील्ड का कोई सोच नहीं रहा। मोबाइल फील्ड में होता है, ये नहीं सोच रहे, वो ऐसे देख रहे कि मोबाइल ऑफिस में बैठ के यूज कर रहे लोग, उसमें डैशबोर्ड भी दे दिया उन्होंने। मोबाइल में डैशबोर्ड का कुछ चाहिए, डिसीजन मेकिंग के तुम रास्ते पे करते हो क्या? अरे आया ना अपने को भी हाँ, request आया, आया। स्पा जैसे लोग आते हैं। उसका आंसर यही है, डिसीजन मेकिंग रास्ते पे नहीं होता। वो उसका इतना स्टूपिड एवरीथिंग इज गेटिंग, इतना स्टूपिड स्टेटमेंट था स्पा का पड़ा कि नहीं ब्रेंडन का था कि वो सम ऑफ माय एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट इन ऑन द फील्ड के लिए तो भाई यूजर के लिए बनाया है डैशबोर्ड, तो जो एसी रूम में बैठा है उसके सामने उसके एक लिए बोर्ड तो होता होगा, है। हाँ, लैपटॉप तो बहुत बड़ा होगा, रहता है उसके पास। उस पे दिखाओ ना, वो क्या मोबाइल पे देखेगा? फील्ड में जाओ, जहाँ वहाँ जाके देखने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है अपने, वैसे वो तो तुमको एसएमएस अलर्ट चाहिए, बोलो मैं करवा देता हूँ, फटाक से एसएमएस अलर्ट करवा दूंगा। मे बी आई डोंट नो वेदर आवर सिस्टम कैन इंटीग्रेट विद व्हाट्सएप और नॉट। तुमको व्हाट्सएप अलर्ट चाहिए, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो एक आवरली रिपोर्ट है, ये फ्लैग्स आए हैं, इतने हो गए हैं, लेकिन डैशबोर्ड ऑन मोबाइल डजंट मेक एनी सेंस। या तो फिर मोबाइल इतना बड़ा होना चाहिए, राइट, बड़ा मोबाइल चाहिए। Anyway, तो ये जो एड्रेसेबल मार्केट है बड़ा, इसको एंट्री करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी मोबाइल है। मोबाइल से जाने का, फिर वेब में घुसने का, क्योंकि बाद में बोलते हैं वो वेब पे चलता है क्या? हाँ वो लेगेसी वाले लोग हैं, वो पूछते ही हैं कि वेब पे चलता है, वेब पहले क्यों नहीं बोला? और पहले अगर अपन ने भी वेब भी बोला, उन्होंने भी वेब बोला, तो आपको इतने सारे ऑप्शन है उनके पास। और इधर छोटे छोटे भी ऑप्शन है, ऐसे नहीं कि बड़े चीज, छोटे भी ऑप्शन है। वेब वाले दुनिया भर ऑप्शन है। अब हनी कोड ऑप्शन है सपोज, लेकिन हनी कोड खुद बनाना पड़ता है, उनकी सर्विस नहीं मिलती तुमको। ये भी आंसर है फॉर इफ समबडी सेज कि हनी कोड क्यों यूज करने का। पहले तो उसमें होता ही नहीं, लेकिन वो दिमाग उनका जाता नहीं वहां तक कि उसमें होता नहीं। ऐसा बोला तो उनको लगता है कि ये ऐसे बता रहे अपने को। एक टिकट हनी कोड का रेस करो, 2 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स आता है एक्नॉलेजमेंट। वो भी है, वो सब भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, बहुत बड़े प्लेयर से वो बना भी देंगे उनको। वो हनी कोड की स्ट्रेटेजी में एक मैंने पॉइंट पढ़ा कि स्प्रेडशीट्स यू कैन नॉट एडिट इजीली ऑन मोबाइल डिवाइसेस, सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड। वो भी अपना भी था अपना कि स्प्रेडशीट डेटा कलेक्शन क्या होता है, स्प्रेडशीट में करते हैं ना अपन डेस्कटॉप पे। मोबाइल पे जब जाते हैं तो स्प्रेडशीट यूज करके दिखाओ मेरे को तुम। मुश्किल वही है पॉइंट उन्होंने लिया। नो वे। तो वो पॉइंट उन्होंने लिया है कि हमने स्प्रेडशीट को, उनकी स्ट्रेटेजी वो है कि स्प्रेडशीट से चालू किया उन्होंने। बट देयर ओनली देयर कि वो सिर्फ अलाउ एडिटिंग स्प्रेडशीट्स ऑन मोबाइल। हाँ, तो स्प्रेडशीट में फोटो कहाँ से डालेंगे तुम? स्प्रेडशीट में एनोटेशन कहाँ से करेंगे? जीपीएस लोकेशन कहाँ से आएगा? स्प्रेडशीट में क्या है, डेटा आएगा, नंबर्स आएंगे, टेक्स्ट आएगा, उतना ही उन्होंने करके रखा है। तो जो लैंडिंग वाला ना, तो वो मोबाइल है अपना। तो एक्सपेंशन में अपने पास वेब है, ये सब कुछ हो सकता है, वर्क फ्लोज है, सब कुछ है। तो जो तूने बोला वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, मतलब अभी के लिए वो है सेल्फ डिक्लेरेशन है, और कौन सा बोला अटेंडेंस, वो लैंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं अपन।
लेकिन उससे भी हाई लेवल पे देखा, तो मोबाइल इज हेल्पिंग अस विद दैट। ठीक आहे निहाल, यस इथे ये आणि ती डायग्राम ड्रॉ कर बरं सिंपल वाली, आणि हे 4 पॉइंट्स वापस लिहिले। नाउ आई हैव स्टार्टेड टेस्टिंग पीपल करने के बाद। सो 4 कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फॉर्म, देन इसमें आएगा वर्कफ्लो, रिपोर्ट एंड इंटीग्रेशन है। देन उसमें और उनको एक्सप्लेन करो। सो मोबाइल फॉर्म्स वो कैसा करता है एक्चुअली। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा ये होगा, एक फॉर्म फिलअप होगा। देन फॉर्म फिलअप होता है, स्टार्ट होगा, हम डेटा एंट्री करेंगे। देन वो डेटा एंट्री जाएगा क्लाउड में, क्लाउड में ये डेटा स्टोर होगा। एंड देन ये प्रोसेस होगा इसमें वर्कफ्लो में। वर्कफ्लो में ये हो सकता है कि हम एक्चुअली अगर अपना कोई सॉरी कोई स्टेप्स या कोई हमारा अप्रूवल या देन रिलेटेड जो हमारे सीक्वेंस होगा वो डेटा इंफॉर्मेशन का, वो थ्रू वर्कफ्लो में इंटीग्रेट होगा, ये होगा प्रोसेस होगा। एंड देन वो वर्कफ्लो से प्रोसेस होके एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होगी। देन रिपोर्ट में सारा जो डेटा आपने फिल किया है वो डेटा उसमें ये हो जाएगा, मीन्स प्रोसेस हो जाएगा, और एक शो होगा आप एक PDF रिपोर्ट वर्ड या एक्सेल में। एंड देन वो एक्सेल का सपोज आपका कोई पर्सनल या प्रोसेस कोई इंटीग्रेशन सिस्टम जावा भी यूज करे करेंटली, तो उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डेटा थ्रू वेरियस सोर्सेस। मीन्स हम डायरेक्टली थ्रू API या डेटाबेस थ्रू हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हम कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा जो हमने अभी कलेक्ट किया है। ये इस थ्रू में हम वेब में जा सकते हैं ऐसे में। तो वो जो डायग्राम थी ना जो मैंने ड्रॉ की थी, सिंप्लीफाइड वाली डायग्राम, वो चाहिए। ये मोबाइल फॉर्म, देन ये क्लाउड, और यहाँ से आएगा पहले बैकएंड या अदरवाइज डैशबोर्ड। एंड देन इसमें भी आएगा ये रिपोर्ट्स में एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो। इसमें एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें ही आ जाएगा। एक्सपोर्ट सेपरेट, एक्सपोर्ट भी लिखा था मैंने। एक्सपोर्ट में भी आएगा। और कहाँ जा सकता है डेटा? 5 points। वर्कफ्लो में। ओके, वर्कफ्लो में। गुड। रिपोर्ट्स में भी देन उसमें भी हम ईमेल देन वैसा चेंज कर सकते हैं आगे। इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा उसके आगे ड्रॉ कर। अभी इंटीग्रेशन से किधर जा सकता है डेटा? इंटीग्रेशन से उनके इसमें जा सकता है जो उनके लेगेसी एप्स वगैरह है, थर्ड पार्टी एप्स, लेगेसी सिस्टम्स, लेगेसी सिस्टम एंड थर्ड पार्टी। तो लिख वहाँ पे। और थर्ड पार्टी नहीं, वो थर्ड पार्टी शुड बी सेकंड एरो। सेकंड एरो। तो कैसे कैसे जा सकता है? कौन से इंटीग्रेशन पॉइंट्स कौन से कहाँ से इंटीग्रेट हो सकता है? तूने अभी बोला था थोड़ी देर पहले। इंटीग्रेशन थ्रू API। हाँ लिखो। उसके पॉइंट्स नहीं है वो अभी। इसमें आएगा ना, इसमें। हाँ, इंटीग्रेशन में ही इसमें एरो कर सकते हैं चलेगा। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन थ्रू API डेटाबेस। मीन्स डेटाबेस में एक्चुअली ऐसा होगा कि अपना जो उनमें डेटा है वो डायरेक्टली हम उनके डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर उनके पास वो फैसिलिटी भी नहीं है तो हम उन लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा जो फिल आउट किया है, वो एक्सपोर्टेड डेटा वो मैनुअली अपने इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ओके, अभी थोड़ा डेटा सिक्योरिटी के बारे में बता मुझे। तो डेटा तुम्हारे सिस्टम में डेटा सिक्योर है, इसका क्या गारंटी है तुम्हारी, या क्या किया है तुमने डेटा सिक्योरिटी के लिए? ओके, तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हमारा जो डेटा है वो अभी सेव होता है AWS में, अमेजोन वेब सर्विस में। तो और जो भी डेटा है एक्चुअली जो आप प्रोसेस करने का जब सेव होता है वो अमेजोन के वेब सर्विस क्लाउड में सेव होगा। और सपोज अभी इन द केस आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये डेटा जो अभी प्रोसेस हो रहा है
वो सिक्योर कैसे हो सकता है? तो जब भी आप डेटा फिल आउट करते हो और जो पाथ होता है अपने फॉर्म फिलअप से लेकर डेटा क्लाउड तक, तो उसमें हम SSL यूज़ करते हैं। तो आपका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड डेटा होगा, अनलेस एंड अनटिल वो वेब सर्विस इसमें नहीं जाएगा, वेब क्लाउड में, तब तक वो डेटा एनक्रिप्टेड रहेगा। एंड देन उधर डिक्रिप्ट होगा, एंड देन ऑटोमेटिकली जेट डिक्रिप्ट होने के बाद वापस से एनक्रिप्ट हो जाएगा आपके क्लाउड से, इसमें सर्वर में, डेटाबेस में। एंड देन Amazon वेब सर्विस का पॉइंट्स, फिजिकल हाँ मीन्स फिजिकल, तो वो एक्चुअली फिजिकल भी बताना इम्पोर्टेंट है कि वो गार्ड, वो आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे। तो उनका जो फिजिकल सर्वर्स वगैरह है वो टोटली जो उनका फील्ड है वो आर्म गार्ड से ये मीन्स सिक्योर्ड है फुली। और देन उसमें भी स्टेप्स है उनके अलग अलग जो सर्विस ये होते हैं। तो ये वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, क्लियरेंस लेवल्स, ठीक है, वो गेट देम लर्न बाय हार्ट। पहली बात तो डेटा सेंटर बोलना है AWS का, सर्वर्स नहीं, डेटा सेंटर्स। एंड फिर लेवल्स ऑफ क्लियरेंस है और फिजिकली सिक्योर्ड है, आर्म्ड गार्ड्स है वहाँ पे, प्लस सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगे हुए हैं। और ठीक है, स्केलेबिलिटी के बारे में क्या बोलना? स्केलेबिलिटी आप जो है अभी स्केलेबिलिटी जो अपना Amazon वेब सर्विस का है वो ऑटो स्केलिंग है। तो इन द केस कि आपके जो डेटा कलेक्टर्स वगैरह वो थाउजेंड्स में भी होंगे तो उसको कोई इश्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो डायनामिक है ऑटो स्केलिंग है, तो एट दिस में आपका जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे उसका जो कैपेसिटी है सर्वर्स का वो भी इंक्लूड बढ़ता जाएगा। और इन द केस क्या बढ़ेगा मेरे को नहीं समझ रहा। इसको क्या है एक्चुअली, सर्वर्स बढ़ रहे हैं ना? हाँ सर्वर्स ही बढ़ते हैं। ऑटो स्केलिंग होता है मतलब क्या होता है? और सर्वर्स के जो स्टोरेजेस होते हैं वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ सर्वर ही बढ़ रहे हैं। वो जो बॉक्स थे ना 2000 सर्वर्स, सर्वर्स तो वो बढ़ते जाएंगे। ओके। स्केलेबिलिटी, देन सिक्योरिटी हो गया ना अभी। और क्या? कंप्लायंस एंड वो है GDPR। हाँ, वो सिक्योरिटी में कंप्लायंसेस। तो दैट वर्ड इज इम्पोर्टेंट, कंप्लायंसेस। तो आपका सिस्टम कंप्लायंट है क्या? यस सर, HIPAA कंप्लायंट राइट नाउ। हिप्पा नहीं, हिप्पा, हाँ, HIPAA। HIPAA कंप्लायंट फॉर हेल्थ केयर। और GDPR स्टिल वर्किंग ऑन इट। ओके, तो वो ये से आने वाला है बाद में। आई थिंक यू कैप्चर्ड गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी डेमो में कुछ दिखाना है सर? इसमें स्क्रीन पे कुछ दिखाना है क्या? लाइट नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो अभी बज गए। ठीक है, आई एम पॉजिंग दिस वीडियो ना, पॉजिंग, स्टॉपिंग। गलत बटन नहीं दबाने को, यही है ना? उसकी सुनना है ना बाद में, आज का वो स्कूल में से घर पे